নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক ফিটনেছ আড্ডা উইথ 3 ৰুমমেটছৰ নতুন এটি এপিসোডলৈ আৰু সদায় মোৰ লগত আছে পংকজ দত্ত আৰু কান্তিমা পৰাকৰ। আজি আমাৰ ফিটনেছ আড্ডাত আমি এনে দুজন যুৱকৰ লগত আছো যিয়ে শৰীৰ চৰ্চাৰ মাধ্যমেৰে আৰু নিজৰ সাহস আৰু অভিজ্ঞতাৰ বলত আমাৰ এই ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আগবঢ়াবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে। তেখেতৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম যে চেষ্টাটো তেখেতে কেনেকৈ চলাইছে। তো আমাৰ আজি মাজত আছে সুখবিন্দৰ সিং উৰফে সানি আৰু প্ৰভাস সিনহা। Hello, good evening. My name is Sukhbindra Singh and I will be the manager and head trainer of the new gym called Sculpt. And my name is Prabash. First of all, I would like to thank Stay Fit Live Pure Fitness Academy for giving us this opportunity to introduce us as a new startup and this. And we have a very good friend. And on behalf of Sculpt Squad facility, we'll be speaking on this podcast. Yes. Yeah boy. তো সানি যেহেতু তুমি আৰম্ভণিতে কলা স্কাল্প স্কোৱাড বুলি কেনে তাৰে হেড ট্ৰেইনাৰ আৰু মেনেজমেণ্ট হেডটো তাৰে বিষয়ে তুমি আমাৰ ৰাইজক এবাৰ কৈ দিয়া কেনেকুৱা কি। So firstly, আমি নামটো দি ফোকাস কৰো like Sculpt Squad. Sculpt means shaping. Squad means a community. So our main goal হৈছে এতিয়া transforming the community. How we can revolutionize the fitness industry and build a fittest community or ধৰক এটা community আমি কেনেকৈ ফিট কৰিব পাৰোঁ, এমায়াৰ কৰিব পাৰোঁ ফিটনেছৰ বিষয়লৈ, লিডিং এ হেল্ডি লাইফষ্টাইলৰ বিষয়লৈ সেইটো মেইনলি। চ' আমাৰ Sculpt Squadৰ মেইন গ'ল হ'ল সেইটো যে উইল নট অনলি just focus on athletes but we'll focus more on general people who really need us. Like ki hoy eta apni sok athlete eta he's already living a healthy life. He don't need much attention. Eta bodybuilder eton hol ba jikun athlete horok ba footballer ho cricketer ho he is already living a healthy life. tar gat eko bemar nai asodu is very minimal. But horok eta jone corporate job kori ase, he is working 10 to 12 hours a day, he is sleeping late, he is waking up early, he is not taking meals in a correct time. So kiman lifestyle disturbed hoy ase ta he lifestyle disturb hoy jogana adikali me saiso bahut lifestyle disorders hul ahi ase like thyroid, diabetes, PCODs. PCOD ta kiman bahi goise swali bilakor majot ami je shock hoilam eta common problem like jodi in case example jodi 10 ta swali ahise jimot after PCOD ase like I deal with them every day mane সবৰে পিছলি আছে। মই এটা সুধো কিয় হৈছে পিছলি কিটা হৈছে তোমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ গম পাইছো মই কিয় মই জানলে কিয় হৈছে নো আই ডোন্ট নো द रीजंस। And one more thing I ऐड करना चाहता हूँ कि PCOS या फिर PCOD एक ऐसा लाइफस्टाइल कंडीशन है जिसका थोड़ा सा भी अगर अवेयरनेस होगा फीमेल्स लोग को देन दे कैन डील विद इट। वो लोग उनको इवन रिवर्स एंड सप्रेस द सिम्टम्स। तो वो अवेयरनेस इतना हाई रॉकेट साइंस नहीं है, वो हम लोग को एज ए ट्रेनर्स राइट हम लोग तो पढ़ना पड़ता है बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को ये रियलाइज होता है कि इट्स वेरी सिंपल नॉर्मल और घर में ही सब हम लोग एक लाइफस्टाइल चेंजेस से हम लोग कर सकते हैं वैसे। सो Sculpt Squad কমিউনিটি এন্ড ধৰক এটা কমিউনিটি হ'ল প্ৰপাৰ মেডিকেল কমিউনিটি, ডায়াবেটিক কমিউনিটি ধৰিলোঁ আমি। চ' উইল ফ'কাছ অন ডায়াবেটিক কমিউনিটি, থাইৰয়েড কমিউনিটি উইল ফ'কাছ অন থাইৰয়েড কমিউনিটি। তো সেই কমিউনিটিৰ পাৰফেক্ট নামটো আমি স্কোৱাড দিছোঁ। So how we sculpt a squad, how we sculpt those medical population. তোমালোকে এই আইডিয়া যোনটো আহিল ধৰচোন তোমালোকে দুজন লগ কেনেকৈ হ'লা ঠিক আছে, লগ হোৱাৰ পিছত তোমালোকে নিজে ধৰচোন ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছা তো তোমালোকৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কিমান অভিজ্ঞতা ধৰচোন আহি কিনে এই কনচেপ্টটো পালা। তো ফাৰ্ষ্ট মই কথাটো সুধোঁ আৰু এটা মোৰ মানে ঠিক আছে বাৰু তোমাৰ এইটো পিছত দিম মই তোমাৰ দুজন লগ কেনেকৈ হ'লা। Okay, so let me start that. মই আপোনাৰ এইচএছ কমপ্লিট কৰিছোঁ, আই এম ফ্ৰম ডিফু। অ'কে, এইচএছ কমপ্লিট কৰি আহিলোঁ মই গুৱাহাটী ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ। দেন মই আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ আছিলে তাত মই এডমিশ্যন লগালোঁ। দেন সিও তাত আছিলে, তো মই এন্থ্ৰপলজি ডিপাৰ্টমেণ্টত আছিলোঁ, সি আছে জিঅ'গ্ৰাফি ডিপাৰ্টমেণ্টত। হি ইজ হেভিং এ গুড ফিজিক্স থাকে নহয় তাৰ ভাল ফিজিক্স every next guy who goes to the gym is my brother and the feeling I know in gym মানে আমাৰ same interest common interest common goal so like hi hello হল নাম সাম হল but সেইটো ফ্ৰেণ্ডশিপ এনেকা নাছিলে যাও আৰু এনে আইছো এনেকা this is a normal conversation then 2008 মই certification কৰি আছিলোঁ Stay Fit Live Pure Fitness Academy পৰা then তাও ক'লো মই if you are interested in fitness তো কৰ then হৈ গ'ল আমাৰ এক্সাম হে আমি কলেজ এৰিলোঁ then মই গম পালোঁ সি GGFI কৰি আছিলে ফিটনেছ ইনষ্টিটিউট তাৰ পিছত then I joined a local gym। Okay, local gym মই কেইমান
এজ এ ট্ৰেইনাৰ থাকিলোঁ তো মোৰ মেইন গ'ল আছিলে মোক ফ্ৰীত এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে ক'ৰবাত চ' মই লোকেল জিম এটা মালিকক পঢ়ালোঁ কিবা পাৰ্টি দেন মই জইন মানে ফ্ৰীতে জইন কৰি ফ্ৰীতে জইন কৰিলোঁ ফ্ৰীতে জইন কৰিলোঁ প্লাছ আই এম আৰ্নিং চামথিং পেণ্ডাৰ ব্ৰেইনছ তো হ'ল তাত জইন কৰিলোঁ দেন আমাৰ একাডেমিৰ এজন ভাল দাদা এজন আছিলে আকিউৰ জামান বুলি তেওঁ মোৰ বহুত ভাল চিনাকি তেওঁ এজন মোক কল কৰিলে যে চানি তুমি এনেকুৱা ইয়াত কাম কৰিবা নেকি বহুত ভাল জিম এটা হয় তো মই ক'লোঁ অঁ চিয়'ৰ অভিয়াছলি কিয় নকৰিম কাৰণ জিমটো জইন কৰিলোঁ ভাল লাগিলে জিমটো গতিকে মানে মোৰ লাইফৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰফেচনেল ষ্টেপ আৰু লোকেল জিম আছিলে ৰিয়েল বিল্ডাৰ্ছ ভেটা ইট ৱাজ এ ভেৰি গুড জিম দেন বেক দেন নাও আই ডণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল তাত মেনেজাৰজনে ক'লে যে য়েছ উই নিড ওৱান মোৰ ফ্ল'ৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ তো মোৰ মাইণ্ডত চবকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নাম আহিলে বিকজ দ্য অনলি গাই আই ন' হু ইজ ইন দ্য ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মোৰ পিছত ইজ হিম তো মই তাক ক'লোঁ যে ভাই আছে এজা সেইটো জইন কৰে সি আহিলে দেন ফ্ৰম 2019 উই ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং টুগেডাৰ তেতিয়া আমি সঁচাকৈ কাম কৰিব ল'লোঁ একেলগত দেন উই শ্বেয়াৰ্ড আৱাৰ ভিজন উই শ্বেয়াৰ্ড আৱাৰ গ'লছ আৰু চব বস্তুবিলাক চিমিলাৰ আছিলে 99.9% সব similar. So we thought that if we both come together into a team, we'll change this thing. 1% can't. So if 1% can change 10 people, together we can change 40 people at least. Okay. So Prabash, tomar background to mane so initially to more my father was in army, so मतलब एक डिसिप्लिन रहता है कि सुबह को उठना है तो तुमको 5:30 बजे ही उठना है, लेट उठोगे तो तुम गए। तो मेरा वो बचपन से 15-20 साल तक वैसा ही चलता रहा। देन फर्स्ट टाइम मैं गुवाहाटी में आया तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, तो मैंने फिर भी मेरे को एक ज्योग्राफी का साइंटिस्ट बनना था, एक मैप वेब बनाने वाला। तो मैंने ज्योग्राफी ज्वाइन किया, करने के बाद एकदम एक्साइटेड कि आज तो हम साइंटिस्ट बन के रहेंगे। जैसे ही ख़त्म किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल ही बनाना था, सिर्फ लिखते रहना था। तो मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद मास्टर्स में करा के देंगे ये सब। तो अच्छा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास किया तो पिताजी और माँ ने बोला कि वाह बेटा आज तो हम मिठाई बांटेंगे, तुम ज्योग्राफर बनोगे बोल के। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने फिर एक यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का प्रोग्राम लिया 6 मंथ का, वो मतलब फर्स्ट सेमिस्टर का। मैंने पैर रखा, मेरे को लगा कि हमको थोड़ा मशीन सिखाएंगे। तो पहले ही वो लोग ने बोला बोलो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। तो मैंने बोला साला ये तो मैंने क्लास 11 में पढ़ा था, तुम लोग मास्टर्स में क्यों पढ़ा रहे हो ये। फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं किताब खोल के देखता हूँ। तो मैंने किताब खोला तो देखा कि सब क्लास 11-12 का सिलेबस छाप के रखा है। मतलब कि ऐसे तो नहीं होगा, पिताजी ने पैसे दे दे ऐसा तो नहीं होगा, ये तो मैं करूँगा नहीं और 2 साल। फिर मैंने एक दिन शाम को मैं वॉक कर रहा था, इवनिंग वॉक। तो करते मैंने सोचा कि पैसा तो चाहिए और ज्योग्राफी भी करना नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँ। तो करते फिर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो देखा कि कैसे करके बाद में मैंने सोचा मेरा टैलेंट क्या है। मेरा टैलेंट है आदमी लोग से बात करना। बात करने के बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ एक्सरसाइज भी अच्छा खासा कर लेता हूँ, बॉडी भी अच्छा खासा, पैसे बहुत आएंगे। तो मैंने फिर फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने बेसिक सर्टिफिकेशन किया CPT का। फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने 3 साल का ज्योग्राफी में पढ़ा था, इधर में मैंने 2 दिन में जो पढ़ रहा था वही मैं एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर रहा था, मतलब प्रैक्टिकली कर रहा था और मुझे मज़ा भी आ रहा था। तो मैंने कभी सोचा नहीं कि पास करूँगा कि नहीं। फिर ऐसे करते फिर मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ। सबसे बड़ा रिग्रेट वही हुआ कि मैंने कर दिया कहीं से फिर हाँ अच्छा था, लेकिन वो कनेक्शन नहीं मिला, मतलब टाटा बाय बाय करके छोड़ दिया वो लोग ने। फिर मैं हमेशा से रियल बिल्डर्स के, मैं थोड़ा स्पिरिचुअली, एक कहावत है विजुअलाइजेशन, आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर दे तो वो आपका रियलिटी बन जाता है। तो मैं हमेशा स्कूटी चलाते समय सोचता था कि आज तो सर्टिफिकेशन हो गया है, प्रैक्टिकल भी हो गया है, आज मैं एक जिम में ज्वाइन करूँगा। तो मैंने सबसे पहले एक जिम है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसको मैंने ऐसे करके देखा, मैं बनना चाहता हूँ उसमें ट्रेनर, बहुत नामी जिम है। तो फिर ऐसे करते फिर उधर में इंटरव्यू में बुलाया, मैंने बोला कि नहीं आपका इधर में तो करना नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पर्सनल ट्रेनिंग कर रहा था। फिर सनी ने मेरे को कॉल किया और उसी से एक दिन पहले जैसे सनी ने मेंशन किया कि रियल बिल्डर्स बैठा पारा, उसी के सामने मैं खड़ा होकर बोला कि यूनिवर्स गिव मी दिस, एक अपॉर्चुनिटी दे दो ताकि मैं इधर में अपना पैर रख सकूँ। तो उसके 3 दिन के बाद ही, तब मैं सनी को इतना अच्छे से नहीं पहचानता था, तो उसी ने मेरे को कॉल किया। देन मेरे को लगा कि यही एक शायद यूनिवर्स का एक साइन है कि तुम सही रास्ते में जा रहे हो।
और एक अच्छा काम भी है एज ए पर्सनल ट्रेनर, दूसरों को हेल्प करना। तो फिर मैं उधर से ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद फिर मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स थे जिसमें से मैंने सनी को देखा, एक बार हाथ ऐसे पीछे करके वॉक कर रहा था। तो मैंने जाके बोला कि भाई तू क्या सोच रहा है? तो सनी बोला कि साला सब लोग को इधर में एक से एक को अच्छे से क्लास लूँगा मैं। बोला क्या होगा? तो लेकिन नहीं, इधर का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मेरे को अच्छा मैनेजमेंट चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि बन जाओ मैनेजमेंट। तो उसने बोला कि बनना तो है, छोड़ूंगा नहीं है जिम जब तक बनूंगा। तो बस उधर से हम लोग ने आइडियाज़ थोड़े डिस्कस किए। सो মোৰ কোৱেশ্যন তোমাৰ সো তোমাক কেতিয়া লাগিছে কি তুমি মানে এটা জিম মানে মেনেজ কৰিব পাৰিবা? সো তোমাক এই ফিল্ডটো কেতিয়া আহিছে মানে? লাইক প্ৰভাস মেনশ্যন হি যেনেকৈ মেনশ্যন কৰিলে যে 2009 আমি একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কাম কৰা। দেন সেই বস্তু আমি অলৰেডি ভিজুৱেলাইজ কৰি আছিলোঁ যে ইয়া ইন এ জিম ইজ এ হেড ইন দ্য মেনেজাৰ উই বথ ৰানিং এ জিম। আৰু ভিজুৱেলাইজ কৰি কৰি আমি সেই বস্তু অলৰেডি মাইণ্ডত লিফ্ট কৰি লৈছোঁ বিফ'ৰ লিভিং ইন টু ৰিয়েলিটি। So কি হ'ল যেতিয়া মই জিমটো জইন কৰিলোঁ, I started learning in and out of the organization, how a receptionist work, how a housekeeping guy work, how a trainer works, how every other stuff works. So মই সবৰ কামটো মানে জানো in and out. ধৰক এটা personal trainer, if he is into a gym, if he is in a gym, he just know how a personal trainer works. In most of the cases, মই কোৱা নাই যে চবে নকৰে, but in most of the cases they only know how to work as a personal trainer, how to work as a floor trainer, but they don't know how a receptionist works. How to convince a client if he is taking 6 months membership, how can I convince that person to take 1 year? সেইটো বহুতে নাজানে। কি হ'ল যেতিয়া my seniors or the authority ক'ব পাৰি যোনে দেখিলে যে I have this quality, সিহঁতে মোক সদায় বহাই দিয়ে সেইটো জেগাত, দেখি পুষে নি আছানি তুমি কৰা এইটো। সেইটো বস্তু কি হ'ল ন, এইটো তেতিয়া বহুতে মোক কৈছিলে যে ইফ ইউ আৰ গিভিং দিছ মাছ এমাউণ্ট এণ্ড ইউ আৰ ৱৰ্কিং ছ' মাছ, তোৰ কাৰণে ভুল এইটো। তাত মোৰ মাইণ্ডত কি আছিলে ন, আই ডোণ্ট নো আপোনাক গম পায়, নেপলিয়ন হিল বুলি এজন অথৰ আছে, নেপলিয়ন হিল থিংক এণ্ড গ্ৰ' তেওঁ মই বহুত পঢ়োঁ। অ'কে, আই হেভ লটছ অফ বুকছ আৰু কোৰ্চ চৰ্চ বহুত পঢ়ি থাকোঁ এণ্টাৰপ্ৰিনৰ বুলি। তেওঁৰ এজন বহুত ভাল এটা কোট আছে তেওঁৰ, লাইক যদি আপুনি অসমীয়াত মই বুজাই দিছোঁ যে যদি আপুনি আপোনাক যখন কোনোবাই পইচা দি আছে, আপুনি তাতকৈ বেছি কাম কৰি আছে, চুন ইউ উইল গেট মোৰ মানি দেন ইউ ৱৰ্ক ফৰ। অবভিয়াছলি আপুনি ইমান শিকিব পাৰিছে, মানুহে সেইটো কিন্তু মানে নাভাবে, মানুহে অকল পইচা লগত তুলনা কৰি সেইটোৱে যে ইমান কাম কৰি আছোঁ এইখিনি পাইছোঁ, এতিয়াও নাভাবে যে ইমান শিকিব পাই আছোঁ, কোনো নাভাবে। চ' সেইটো থিংক আই মেছেজ সেইটো মানে ভাল লাগে মোক নিজৰ sharpening the X মানে I'm always sharpening my X, so when I have time to cut it, I will cut it more faster than anyone else. So সেইটো মোক ভাল লাগে। মই শিকি আছিলোঁ সেনেকৈ শিকি মই চাইছোঁ যে ইন লট অফ দ্য জিমছ আই হেভ ৱৰ্ক অৰ মাই ফ্ৰেণ্ডছ আৰ ষ্টিল ৱৰ্কিং, তো মই সদায় কানেকশ্যন থাকোঁ যে ক'ত কৰি আছ, কি কৰি আছ, কেনেকৈ কৰি আছ, হাউচ দ্য জিম। তো মই বহুত লুপ হোলছ দেখিলোঁ কিছুমান, বহুত লুপ হোলছ আছে জিমবিলাকত। অ'কে, লুপ হোলছকেইটা আছিলে মই प्रोफेसर मैं बहुत क्लोज हो रही है, तो मैं डिस्कस करूँ प्रभाव से ऐसा ऐसा है, हम लोग चेंज कर सकते हैं ये सब। इसे हाँ ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, बट আমি তো যাও না বাবার সাথে স্যার উই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দিস নাই কাম নাই বাহ বাহ তুমি নালাগে বাহ সেনেকৈ কি হ'ল বস্তুবিলাক সেনেকৈ চলি আছে নালাগে মানে তোমালোক আমাৰ ওপৰত কোনো অথৰিটি আছিলে ন, কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমি চেঞ্জ কৰিম এইটো তুমি सर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ ग्रुप ट्रेनिंग। आप एक आपका चार्जेस है 10,000, लेकिन एक ग्रुप में आप 6 क्लाइंट को कराएंगे तो आपको मिल रहा है 18,000। थिंक अबाउट इट, इतना सारा पैसा जरूरत नहीं। they don't want to take risks or they don't want to take new initiatives। হেতি সেই কনভেনশনাল ট্ৰেইনিং প্ৰট'কলছ বা আগৰ দিনৰ ট্ৰেইনিঙে চলাই আছিলে, চ' উই ৱান্ট টু চেঞ্জ ইট মানে। চ' সেইটোৱে মেইন গ'ল। দেন আমি লুপহোলছকেইটা চালোঁ, ফিক্স কৰা ট্ৰাই কৰিলোঁ, এতিয়াও বহুত লুপহোলছ আছে যোনটো আমি কাম কৰি আছোঁ। ইন দ্য ফিউচাৰ আমি তুমি যোনটো কথা ক'লা ন, মানে বেলেগে আহি নগৈছে বুলি এটা হৈ গ'ল তোমাৰ মানে মাথা উঠি কৰিব নিবিচাৰে হয়, মানে কি চিম্পল চাইন লেজিনেছ ন, মাথা বুজিটো আহিব মানে চলি আছে ন, চলিব দে কৰি আছে। কোনোবা আইডিয়া দিছে, সিহঁত দুটাই ধৰাচোন মই মালিক মোক আইডিয়া দিছে, মই যদি ভাবোঁ এইটোতো কৰিব পাৰি কিন্তু আৰু মাথা উঠি কৰিব লাগিব, এতিয়া গ্ৰুপ কিয় এইবিলাক মাথা কিমান কষ্ট কৰি নালাগে। He is not thinking about the revenue he is getting from মানে সেইটোৱে প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল যে হি ট্ৰাষ্ট নকৰিলে আমাৰ ওপৰত। মই এটা মানে তেতিয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন মানে সিদিনাখন পৰা প্ৰফেচৰ যেতিয়া লগ কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ভিডিঅ' এটা আছে, তুমিও চিনা ইও চিনা,
ये तो क्वेश्चन मेरा जन्मों से चल তো সিংহা তোমাৰ এইফালে আছিল নে গাঁও গাঁওটো শিলচৰ হয় শিলচৰ विष्णुप्रिया मणिपुरी মণিপুৰী এই কথাটো কিয় লেংগুৱেজ নোৱাৰো কোনবা কৈছিলে গোপাল নেপালী হয় আচ্ছা মেবি নেপালী হ'ব পাৰে না নাই চব এক্সেন্টটো কাৰণে লাগে অকমান নেপালী এক্সেন্টটো অকমান নেপালী হয় ইফ ইউ নটিছড So Nepali study তোমাৰ যদি আছে 10 DM আগে শুনিলো সরি সো মানে কি ঠিক আছে তো না एक्चुअली কি সৰুৰ পৰা এনে শিকিলো ন তো মানে এই কি কয় এক্সেন্ট বুলি কয় যে মানে ভাষাটো মই শিকিব ট্ৰাই নকৰিলো নাই দৰকাৰ নাই গুৱাহাটীত এনেকা পপুলেশ্যন আছে দৰকাৰ নাই নাই দৰকাৰ আছে মই এবাৰ গৈছিলো গাঁৱত গৈছিলো আনবিলাক কথা পাতে না কলেজ মোক পাগল বুলি কৈছিলে মানে এনেকুৱা কৈছিলে কিবা প্ৰব্লেম আছে নাই কৈছে একচুৱেলি লেংগুৱেজ ভাষাটো নোৱাৰে তো এইকাৰণে প্ৰব্লেম বহুত বেয়া কৰিছে আপোনালোকে যত থাকক সমাজতে শিকাব লাগে বুলি কয় সমাজত বাট সমাজে চেঞ্জ হৈ গৈছে ন সেইটোৱে সমাজে চেঞ্জ হৈ গৈছে এতিয়া মোক এইটো লাগে যদি কিবা এটা হয় কিবা এটা কৰিব আছে সমাজে এই থৰি মোক সাপোৰ্ট কৰিব তো এইকাৰণে মানে যোনটো আমাৰ ইয়াতে কমিউনিটি যোনটো আমাৰ বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছো আমাৰ ফিটনেছৰ এনভাইৰনমেন্ট লৈ ইয়াতে যি দৰকাৰ বেলেগটো কথা ভাবিব লাগে ফিটনেছ সোসাইটি লৈ লোৱা কিবা যে কৈছে কেনে মানুহ আগবাঢ়ি আহে ঠিক আছে আমি আমাৰ হ'ব আৰু এইটো বড় কথা সো তো তোমালোকৰ স্কাল্প কৰাৰ যোনটো কনসেপ্ট আছিল এইটো এটা হৈ গ'ল তোমালোকে বিজনেছ ইনিচিয়েটিভ এটা লৈছা ভাবিছা যে না কৰি এতিয়া মোক কথাটো কোৱা স্কাল্প কৰাৰ কনসেপ্টটো প্ৰথমে কাৰ আহিছিলে প্ৰভাসৰ আহিছিল নে তোমাৰ আহিছিল জানে আমাৰ দুটাই আছিলে ফাৰ্স্ট হা নে দুটাৰ অবভিয়াছলি আহিব নহয় এটা আহিছে এট দ্য সেম টাইম মানে হেতু সিনাৰিওটো আছিলে মই যোনটো কৈছিলো ডে টু এই হাত কথা মাৰে কথা মাৰে আরে এনে মিছাটা কৈছে ঠিক আছে জি ये दिन हाथ टू पिछले आया असले तो मैंने इसको पूछा कि भाई तू सोच क्या रहा है तो उसने बोला कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा पैसा भी नहीं दे रहा और काम भी मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं कर रहा है तो क्लाइंट के साथ रिलेशन बहुत खराब हो जाता है काश हम लोग के पास इतना पावर होता कि हम लोग एक मैनेजमेंट करके हम लोग सब कुछ सुधार सकते और सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते हम लोग इंसानों के हेल्थ के पीछे भागते तभी हम लोग ने बोला कि भाई लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग का चाहे मैं ये जिम छोड़ के कहीं में भी चला जाऊं बिकॉज मेरे को पता था कि सनी विल नेवर लीव द जिम क्योंकि उसने बोला था कि मैं इस जिम में मैनेजमेंट लेके ही रहूंगा और मुझे पता था कि वंस दिस गाय कमिट मतलब हो गया और जमीन आसमान उल्टा होना पड़ेगा उसको हटाने के लिए एंड उसका एक इनकम का उसने भी टारगेट रखा था कि दिस इज द इनकम उसको मैं अगर 6 महीना कंटिन्यूअसली मारूंगा देन आई विल लीव द जिम सीधा रिजिग्नेशन लेटर के साथ तो उसी दिन मैंने बोला कि ठीक है भाई मेरा बिकॉज मेरा थोड़ा क्या है कि दिमाग इधर से उधर भागता है कि मेरे को जहाँ में लगता है कि नहीं इधर में स्ट्रेटेजी अच्छा है तो इधर में मैं ले लेता हूँ लंबा रिस्क ले लेता हूँ लेकिन ले लेता हूँ मैंने इसको बोला कि मेरा तो ठीक नहीं है आई विल टेक अनदर लीप मैं छोड़ के कहीं चला जाऊंगा और लाइफ में कहीं भी होंगे मैं तेरे को कॉल करूँगा तो प्रॉमिस कर कि तू मेरे को छोड़ के आएगा क्योंकि अगर तेरे को अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इसने बोला कि हाँ भाई करके तो जरूर रहेंगे ये चाहे कुछ भी हो जाए करके तो जरूर रहेंगे इसको रियलिटी कैसे कब कहाँ और क्यों वो सब नहीं पता लेकिन इंटेंशन अगर अच्छा है तो मिल जाएगा कोई ना कोई तो आके दे ही देगा तो देन आई लेफ्ट द जिम मैंने वो जिम छोड़ा और मैं फिर मेरे को तब तक पता चल चुका था कि पैसा जो है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फिटनेस पैसा जो है उस जगह में सही नहीं जा रहा है और पैसा उतना साइकिल ऑफ मनी इतना अच्छे से नहीं चल रहा है जिधर में चलना चाहिए अगर आप पैसा ले रहे हो तो वैल्यू भी वैसा ही आना चाहिए तो मैंने देखा कि पहले जब मैंने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनिंग का जब मैंने कोर्स में घुस के प्रैक्टिकल नॉलेज लेना शुरू किया तो पहला क्लाइंट आया और उसको वेट लॉस करना था नॉर्मल जनरल वेट लॉस करना था तो मैंने बोला कि ठीक है तो आपका कुछ मेडिकल कंडीशन क्योंकि वो हम लोग को बोला जाता है कि पहले पूछ लो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है तो उसने बोला कि हाँ थायराइड है अराउंड 15 का ऐसा लेवल में मैंने बोला कि ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उसने बोला कि हाँ पर वो सब छोड़ो ना वेट लॉस कैसे करना है वो बताओ मुद्दे पे तो मैंने सोचा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे करते रहने से तो मेरा खुद का एथिक्स का बात है
तो फिर मैंने फिर भी किया उधर से कि बिकॉज मैनेजमेंट से प्रेशर आ रहा था कि करो 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 तो मैंने फिर बहुत रिसोर्सेज अपने प्रोफेसर और सर सनी से भी पूछा मैंने कि कैसे करना है थायराइड से के साथ कैसे डील करना है तो ऐसे करते करते फिर सेकंड क्लाइंट आया जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ था अभी तो और प्रेशर पड़ गया दिमाग में भाई थायराइड का ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी टाइप 1 डायबिटीज़ कैसे डील करूँ फिर देखा कि एक को एंजीना बोल के डिसऑर्डर मतलब कंडीशन है हार्ट का मतलब ब्लॉक हो जाता है तो वो मतलब रनिंग इतना नहीं होता है तो मैंने सोचा कि यार ये दोनों को तो फिर भी मैं कुछ ना कुछ करके शुगर लेवल डाउन लगा के मैं कुछ कर सकता हूँ इसको मैं क्या कराऊंगा जो वो है ऐसे करते करते थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता गया और साथ ही साथ मैं पढ़ते भी गया क्योंकि मेरे को पता था कि अगर डील करना ही है तो मैं बार बार सबसे मतलब पूछ नहीं सकता हूँ मेरे को खुद को भी रिसर्च थोड़ा बहुत करना पड़ेगा तो ऐसे करते करते मैं थोड़ा कंटिन्यू एजुकेशन किया तब तक मैं उतना लेवल तक आ चुका था कि मैं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन तक पहुंच गया था कि मतलब ठीक है कुछ भी हो जाए एक ऊपर में डॉक्टर अथॉरिटी है तो उसके अंडर में मैं डॉक्टर के साथ थोड़ा कुछ डील करके मैं बात करके मैं ऑर्थोपेडिक उसके साथ कर सकता हूँ मेरा अगर स्कोप में है तो फिर मैंने फिर ऐसे करके फर्स्ट क्लाइंट मेरे को मिला जिसका ये बैकबोन पूरा ब्रोकन था और उसने फिजियो भी लिया 3 months 4 months ऐसा लिया एंड फिर मेरे को बोला कि प्रभाष आके तुम डील करो उसके साथ और मैंने जब देखा तो उनका वेट था अराउंड 140 अप्रोक्सीमेटली 140 विद अ ब्रोकन बोन और 140 उनका वो था तभी मैंने सोचा कि चलो ठीक है अभी तो मैंने अपना अच्छा खासा मैंने नॉलेज भी गेन कर लिया और लीगली आई कैन वर्क इन इट तब मैंने आंटी को पहला एक्सरसाइज दिया था सिर्फ ऐसा करने के लिए 7 रेपिटेशन एक्सटर्नल रोटेशन दिया तो 6 रेपिटेशन में ही आंटी का चक्कर आ गया बिकॉज डीलिंग विथ दिस स्पाइनल कॉर्ड इज वेरी थोड़ा बहुत ये सब प्रॉब्लम आता है तो मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी आपका पूरा मेडिकल रिपोर्ट दीजिए जब मैंने देखा तो मुझे वो पेन फील हुआ कि क्या हुआ मैंने बोला कि आंटी आपको कितना वेट लॉस करना है तो आंटी ने बोला कि वेट लॉस नहीं करना है बेटा मेरे को सिर्फ ये बिस्तर से उठ के टॉयलेट तक जाना है सुबह को विदाउट हैविंग अ बैक पेन और फिर सोना है मतलब वैसा टाइप का मेरा वो है फिटनेस चाहिए तो मैंने बोला कि आंटी इसको तो आपको कोई भी नहीं ठीक कर सकता इवन आपने डॉक्टर के साथ भी किया डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा लेकिन आपको सिर्फ आप ही ठीक कर पाओगे इवन भगवान भी आके नहीं ठीक कर पाएगा अगर आपको ठीक करना है तो आपको ये इंटेंशन रखना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए बाय हुक और बाय क्रुक आज नहीं तो 10 साल के बाद आई हैव टू गेट अप एंड डू माई डेली वर्क एंड टिल डेट टचवुड शी इज लिफ्टिंग 60 kgs का वो रेजिस्टेंस बैंड होता है धीरे धीरे टाइम लगा और 140 से शी इज अराउंड 110 ऐसा हो गया बहुत धीरे धीरे एंड वेरी हार्ड वर्किंग वुमेन तो तभी क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा हाँ कॉन्सेप्ट हाँ तो तब तक मैंने और सनी ने वो इमेजिनरी वर्ल्ड में हम लोग ने पूरा सब कर लिया था नाम फिजिकली नहीं आया था तो वन ऑफ आवर लीडर आई डोंट वांट टू मेंशन हर नेम बट उसका भी बहुत स्ट्रेंथ्स है एंड शी हैज अ वेरी गुड स्टोरी तो उसको स्पॉन्डिलाइटिस है तो स्पॉन्डिलाइटिस में लाइक रेडिएट हो जाता है पेन एंड ऑल तो वो IAS का प्रिपरेशन कर रही थी तो इमेजिन IAS का वेरी टफ वो तो दिन रात उसको पढ़ना पड़ता है पढ़ना ही मना है उसमें ये स्पॉन्डिलाइटिस वो सब में तो उसने अराउंड 6 hours का राइटिंग लिखा उसने वो IAS का एग्जाम का हाथ फूल गया उसका पूरा स्वेल हो गया बट स्टिल शी रोड शी पास एंड उसने पास करके फिर फाइनल में नहीं गई मतलब इंटरव्यू में उसने क्रैक नहीं कर पाया बट जब मैंने ये स्टोरी सुना तो मुझे लगा यार ये तो हम लोग सुबह को 6 बजे उठ के भी नहीं कर पाते इतना पेन के साथ जीना तो बहुत मुश्किल है तब फिर उसने भी धीरे धीरे करके वेट लॉस अच्छा से करने लगा तो उसने बोला कि आई हैव दैट फाइनेंशियल कंफर्टेबिलिटी मतलब मेरे लिए लाइफ में मैं गर्व नहीं कर रही हूँ लेकिन आई हैव दैट कंफर्टेबिलिटी कि आई कैन हेल्प यू गाइस एंड जैसा मुझे फेस हुआ है वैसा मैं दूसरों को फेस करना नहीं देना चाहती तो एक फैसिलिटी बनाते हैं जिसमें पूरा मतलब जितना भी एंजल एंड शी हैड द सेम विजन उसने ज्वाइन किया मैंने बोला कि यार मेरा तो दिल से बहुत अच्छा हूँ मैं ये सब उन लोगों आदमी लोग को मैं मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं दे पाऊंगा तो वी नीड वन मोर टीम मेंबर जो मुंह में बोल देता है तो इसलिए गुड कप बैड कप तो प्रभास কেতিয়াও ক'লে তুমিও কৈ আছা যে মেডিকেল ক্লায়েন্টছ সো ধৰচোন তোমালোকে তাতে বেছি কৈছে সিও ধৰচোন পষ্টন ক্লায়েণ্টটো চা মেডিকেল ক্লায়েণ্ট আছিলে তো তোমালোকৰ মানে ইহঁতৰ ওপৰত মানে যোনবিলাক ক্লায়েণ্টছ ধৰচোন মেডিকেল
বেকগ্ৰাউণ্ড আছে যাৰ সেইটো কাৰণে সিহঁতি ফিটনেছ গ'ল ৰিচ কৰিব পৰা নাই চ' তোমালোকে কিয় ভাবি আছা যে এইটো এনেকুৱা এটা অডিয়েঞ্চক টাৰ্গেট কৰিলে তোমালোকৰ ধৰচোন যোনটো তোমালোকে গ'ল ভাবিছা সেইটো কেনেকৈ তোমালোকে হেল্প হ'ব মেডিকেল মানে পপুলেশ্যনৰ কাৰণে মানে মই যেনেকৈ ক'লোঁ যে আপোনাৰ মেডিকেল পপুলেশ্যন বহুত লয়েল ক্লাইণ্টছ থাকে মানে সেইটো মোৰ লয়েষ্ট মানে লয়েল পপুলেশ্যন তো কি হৈছে মই এজনী মোৰ ক্লাইণ্ট তেওঁৰ ষ্টৰি এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তো তেওঁৰ নাম হ'ল মৌচুমী শৰ্মা মইতো মেম মাতোঁ এলাউড নাথাকে কি হ'ল মেমৰ ডাইচিক্সিৰ একটাই আছিলে এটা ডিচঅৰ্ডাৰ হয় ডাইচিক্সিৰ একটাই চ' কি হয় প্ৰেগনেঞ্চিৰ পিছত এবডমেন মাছলছবিলাক ছেপাৰেট হৈ যায় ছেপাৰেট মানে ভেকুম এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায় তো কি হয় when you have no one to guide you during your pregnancy বহুত problem face কৰে definitely most বহুত বেছি problem face কৰে so memory না কোন নাছিলে মানে guide কৰিব during pregnancy and pregnancy time বহুত ups and downs আহে females life or moods or hormones or so she started eating a lot so he vacuum to ki hol bahut fat stability hoy মানে start hoy so now her body is like she is fit arms of fit ekdom legs of fit but one level আছে so last 2.5 years of time মোৰ লগত আছে ইমান লয়েল মই লাগে কোনো না ক্লায়েন্ট দেখা নাই যোনটো 3 years লগে এটা ট্ৰেইনাৰ লগত আছে তাই মানে এতিয়া she is leaving me because I am moving to something else but আমি ইমান দিনত অলমোস্ট আমি 12 to 13 inches সোমাই দিছোঁ এতিয়া অকণমান আছে নেগলিজিবল বাট অকণমান আছে বাট এনেকৈ যেতিয়া তাই আহিছিলে ন ফাৰ্ষ্ট টাইম তেখেত যেতিয়া আহিছিলে ন ফাৰ্ষ্ট টাইম ত' বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড আছিলে ধৰকচোন আপোনাৰ ছ'চাইটিত এনেকৈ আছে ইউ আৰ নট প্ৰেগনেণ্ট বাট পিপল চি ইউ এনেকৈ লুক দিয়ে ন চবেই জানে চি ইউ প্ৰেগনেণ্ট বাট হ'লেও কিছুমান লুকছৰ কাৰণে বা কিছুমান আপুনি ক'ৰবাত গৈছে একদম ধৰক এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি একদম বিয়া চিয়াত গৈছে একদম কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি হাত কেঁচি বাট সেইটো কাৰণে অকণমান no they feel insecure হেতি নিজৰ ফুল অপটিমাল লেভেলত যাবই নোৱাৰে because of this মানে আৰু এইটো not only in her case but maximum চাইছোঁ মানে overweight থাকে বা যোনে একদম পাতল থাকে ন হেতি অপটিমাল লেভেলত যাব নোৱাৰে because of this because of their body মানুহে বডি শেমিংটো কৰে এইটো লুকাবৰ কাৰণে কৰিছে আৰু মইতো বিউটিফুল আৰু এইটো লুকাবৰ কাৰণে কৰে আৰু মইতো কম কৰিব লাগে ঠিক গাত ল'ব লাগে গাত লৈ চেঞ্জ কৰটো এক্স্যাক্টলি रो मत कि मेरा ऐसा है मैं नहीं होगा मेरा ऐसा है तुम चेंज करो सॉल्यूशन तो वही है ना अच्छा लाइफस्टाइल करो एक्सरसाइज करो ये सब बहाना है ना तो छवि गर्ल्स है क्यूर नहीं इट्स ओनली मार्केटिंग ये आई लव माय बॉडी if you love your body where put junk food in it exactly if you love body make it a good body I am the way I am ऐसे थोड़ी ना पैदा होते तुम अभी एक्सरसाइज ये line I hate this line I love my body I am the way I am this is the best क्या पागलपंती है यार तुम this is your body this is your इसने आज एक मॉर्निंग में वीडियो दिया that my body is my temple okay तुम टेंपल को गंदा करोगे क्या नहीं करोगे there is a big if you are difference putting junk food मैंने बोला कि junk foods खाना नहीं चाहिए this is a part of life you must enjoy your meals you must give cheat meals but at the same time you must live a healthy lifestyle there is a big difference between I love my body and I respect my body yes ये बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है exactly so to Sunny তোমালোকৰ স্কাল্প স্কোৱাৰৰ ট্ৰেইনিং কনসেপ্ট কেনেকুৱা হ'ব training concept so at the beginning আমি ভাবি আছিলোঁ যে we will introduce 7 different types of training like that normally যিমান যেনেকৈ থাকে আপোনাৰ strength training weight loss training fitness training cardio crossfit powerlifting bodybuilding সেইবিলাক থাকিব but at the same time আমি কিছুমান নতুন বস্তু ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছোঁ like animal flow okay yeah definitely animal flow okay then metabolic conditioning বাকিটা সাৰপ্ৰাইজ ৰাখি দিয়া নেকি okay তিনটামান কৈ দিয়া অলপ মানুহৰ ইন্টাৰেষ্ট গ্ৰো হয় so animal flow I don't think তোমাৰ জিমত আছে ইজালৈকে গুৱাহাটীত animal flow then basic এটা হয় suspension training যোনটো বহুত মানে কৰায় but we go more deep on that now okay one বেছি deeply সোমাম সেইটো বস্তু প্লাছ আমি ভাবিছোঁ আমি এটা জিমত কি হয় জিমত only physical fitness ওপৰত ধ্যান দিয়ে if you have noticed physical fitness ওপৰত ধ্যান দিয়ে but আমি এতিয়া আমাৰ স্কাল্প স্কোৱাৰত মেণ্টেল ফিটনেছ ওপৰত ধ্যান দিওঁ अबाउट मेंटल फिटनेस मैं कहूँ भी सर सो लाइक पहले मैंने जब CPT किया देन जितना भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन होता है टू मेंटेन माय लीगल लाइसेंस वो करते करते एक पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं इतना पहुंच गया कि मैं
इवन मेडिकल पॉपुलेशन, एथलेटिक पॉपुलेशन और जनरल पॉपुलेशन को डील कर रहा था, लेकिन मेरे को वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था कि यार ये सबको तो मैं ट्रेन करा ही सकता। एट द एंड ऑफ द डे मूवमेंट करो बॉडी का एंड यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग हेल्दी वे में, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। मुझे कि क्यों ऐसा क्यों हो सकता है, तो मैंने रियलाइज किया कि न्यूट्रिशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कि एक्सरसाइज किया लेकिन न्यूट्रिशन खराब है तो देन इट्स ऑफ नो यूज। फिर मैंने उसमें भी करते उसमें भी न्यूट्रिशन में भी पढ़ाई करते आई गॉट वेरी एक्साइटेड। फिर भी मैंने न्यूट्रिशन का अप्लाई करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड डीलिंग विद पीपल न्यूट्रिशन में भी। फिर भी मैंने रियलाइज किया कि फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन का मैं एडवाइस तो दे देता हूँ लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। तो वो फिर उसमें मैंने देखा कि ये दो न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट और एक कॉन्सेप्ट छूट गया, वो है साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड नॉर्मल काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में करंटली मैं उसी में वो कर रहा हूँ। तो मैंने वही रियलाइज किया कि थ्रू साइकोलॉजी वी कैन एक रिवॉल्यूशन ला सकते हैं कि हम लोग सब लोगों को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कैसे सबकॉन्शियसली लाइक साइंटिफिक वे में कैसे उन लोगों का ब्रेन वेव्स चेंज करके कैसे एक ही बात को रिपीटेडली बोलते रहना। देखिए आप सबका इनसिक्योरिटीज अलग अलग है, बचपन से लेके जितने भी इनसिक्योरिटीज आप लोग ने रखा, बिकॉज वो एक ही चीज़ आपको बार बार बोलते तो हम लोग भी विल ऑल्सो, जब मैं लीगली एक साइकोलॉजिस्ट का जब मेरे को मिल जाएगा, ये पॉजिटिव मैनर आप करना चाहते हो, मैं सबकॉन्शियसली भराता रहूँगा विदाउट देम नोइंग, उन लोग को पता भी नहीं चलेगा कि यूजिंग, तो उन लोग को फिर पता चल जाएगा कि अच्छा दिस इज द रियलिटी। तो मुझे ये रिवोल्यूशन से मुझे एक सवाल याद है कि मतलब आप लोग ये लाइक स्कल्प्ट स्क्वाड से आप लाइक आपने क्या रिवोल्यूशन देखा है इन फ्यूचर, या तो आप क्या रिवोल्यूशन लाना चाहते हो इन फिटनेस इंडस्ट्री? रिवोल्यूशन जैसे इसने बोला कि पता सबको होता है कि वेट लॉस कैसे करना है, मूविंग ओनली विल इवेंचुअली यू विल लूज वेट, बट थॉट प्रोसेस थॉट प्रोसेस चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस क्रिएट करना है, एंड इन फ्यूचर विल कोलैब विद डिफरेंट फिटनेस प्रोफेशनल्स इन हेल्थ सेक्टर लाइक डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ भी, तो उनके साथ कोलैब करके या फिर उनका हेल्प से हम एक कम्युनिटी को फिट करना चाहते हैं। जैसे कि वो बोला पहले कि स्क्वाड मीन्स कम्युनिटी, तो वी विल ट्राई टू फिट ए कम्युनिटी। एक दिन का इंसिडेंट बताता हूँ इसका, और मेरा एक गोल है कि जैसे लोग एक विलेज को अडॉप्ट करते हैं ना, विल मेक ए विलेज फिट village. If you are in Guwahati, name any village. This is the fittest village in Guwahati. Guwahati doesn't have village. Sukhbindra. Yeah, that's a very important question. इमानके तुमलोকৰ হেৰি ভাবিছা যদি ইয়াতে মাৰ্কেটিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে মাৰ্কেটত কেনেকৈ আনিবা? মাৰ্কেটিং লাইক It is a marketing सबे करे, हेल्पफुल फोटो बनाए। I'm very good at marketing. बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ इधर का पेन लेके उधर में बेच देता था। फिर साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते ही मेरे को पता चल गया कि अच्छा मैं दिखता ऐसा हूँ लेकिन तो ऐसा मैं दा टिप्स मुक्या मार्केटिंग में ऐसा तो हाँ मैं थोड़ा इन डेप्थ जाता हूँ। तो when it comes to marketing, पहला 3 पॉइंट वेरी बेसिक पॉइंट इज टू रन एंड ऑर्गेनाइज। अभी स्टेट लिक्टर फिटनेस एकेडमी इतना रिनोन क्यों है? पहला हो गया दे शुड लव योर प्रोडक्ट, नेक्स्ट हो गया दे शुड लव द प्रोडक्ट एंड यू अ पर्सन हु इज सेलिंग, ट्रस्ट करना चाहिए उस इंसान पे, ये इसको मैं भरोसा करके ले सकता हूँ कि नहीं। एंड थर्ड हो गया दे शुड लव द प्रोडक्ट एंड देन लव द पर्सन एंड एट द सेम टाइम कंपनी। अगर मैं प्रोडक्ट और सर्विस को और इंसान को ट्रस्ट कर रहा हूँ लेकिन कंपनी को ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक बार सोचूंगा कि शुड आई ट्रस्ट दिस। और फोर्थ और फिफ्थ जो है विच इज़ अ सीक्रेट बट मैं शेयर कर देता हूँ, इट माइट साउंड थोड़ा बहुत रूड। तो इन मार्केटिंग वी यूज़, मतलब जनरल मार्केटिंग और जितना भी सक्सेसफुल मार्केटिंग है उसमें एक होता है पेन थ्रेशोल्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये पॉडकास्ट का माइक चाहिए एंड आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, तो मैं इसको सोचूंगा भी नहीं एक बार के लिए कि लूँ कि नहीं लूँ, तो मेरा पेन थ्रेशोल्ड थोड़ा कम है। लेकिन अगर मैं बचपन से ही ऐसा मेरा पेन थ्रेशोल्ड है कि मैं बहुत सोचता हूँ, कुछ इंसान होते हैं ना सोच लेने से पहले बहुत सोचते हैं, नॉट दैट पैसा नहीं है बट बहुत सोचते हैं, तो उनके लिए फिर फोर्थ हो गया पहले प्रोडक्ट और इंसान और कंपनी, फोर्थ हो गया ये पेन थ्रेशोल्ड। फिर उसका पेन थ्रेशोल्ड में घुसना है। अभी अगर एक उसमें से पॉडकास्ट का मतलब माइक का शोरूम में गया,
जाने के बाद द सेल्समैन हु नोज एग्जैक्टली वो है कि कैसे हाउ टू मैनिपुलेट दैट पर्सन, नॉट मैनिपुलेट मतलब हाउ टू ऐड वैल्यू बट एट द सेम टाइम उसको और थोड़ा गुड आइडियाज दे कि क्या अच्छा देना है। तो मैं क्या करूँगा थ्रू जनरल इंटेलिजेंस, थ्रू गोइंग डीप इनटू हिज प्रॉब्लम कि देखो मेरा प्रॉब्लम है कि मैं तो वैसे भी पॉडकास्ट अकेला ही बनाता हूँ, तो आई डोंट नीड ऑमनी डायरेक्शनल, आई नीड कार्डियो मेरे को चाहिए। तो फिर वो सर्विस बोले कि सर आप ये ट्राई कर सकते हैं, तो ऐसे करके। और फिर ह्यूमन का बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जैसे कि एक हो गया टोन मॉड्यूलेशन। अभी इस होल वर्ल्ड में द सक्सेसफुल स्पीकर एंड सक्सेसफुल जितने भी वो है वो क्यों करते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। हेलो माय नेम इज प्रभाष एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टे फिट लिव योर अकेडमी, बट लेट मी टेल यू दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गोइंग टू बी अ revolution, this is going to be a revolutionary podcast and this is going to be, do you believe me? Yes, I would say that. तो ये टोन मॉड्यूलेशन कभी फास्ट कभी स्लो, जैसे बॉक्सिंग में कभी जैब कभी क्रॉस, पता नहीं चलने देना, वैसे थ्रू टोन से वी कैन मैनिपुलेट, आई मीन we can change people's thought. And then comes the 4-second rule which is very important, and ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे अगर आप बाल काटने के लिए जा रहे हैं लोकल सैलून में, अगर वो टाई कोट पहन के खड़ा है अरमानी का, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू चार्ज यू अ लॉट ऑफ मनी, मतलब आपका पहला थॉट वही आएगा। एंड अगर वो नॉर्मल आइए सर काटते हैं, थोड़ा बाल काट लेते हैं, तो अपीयरेंस मैटर करता है, अपीयरेंस मैटर करता है। एट द सेम टाइम उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका जैसे वो स्माइल क्या पास कर रहा है, क्या कर रहा है, हैंड बॉडी लैंग्वेज। और मेल्स लोग के साथ बात करने का भी होता है कि कभी भी एक मेल के साथ फेस टू फेस मत बात करो, बिकॉज हम लोग का ह्यूमन जेनेटिक्स ही डिज़ाइन हुआ है कि हम लोग हंटर्स एंड गैदरर्स है। तो कभी भी हम लोग ऐसे फेस टू फेस बात करेंगे तो दैट पर्सन विल थिंक कि ये कुछ तो गड़बड़ है, इसका फाइट करना है। लेकिन अगर आप उसके 45 डिग्री एंगल में खड़ा कर दोगे दो इंसान को, तो ही विल ट्रस्ट इट। लड़कियों के सामने कभी भी हाथ पीछे करके बात नहीं करना है, बिकॉज दे वोंट ट्रस्ट, ऑलवेज हैव दिस थिंग एंड गुड मॉर्निंग एंड हैव अ स्माइल। तो वैसा थोड़ा बहुत मार्केटिंग का पहले मार्केटिंग মানে এইটো য়েছ এক্সেক্টলি। চ' হা আমি তোমালোকে চাইক'লজি কথাটো ক'লা, তোমালোকে মেইনলি চাই আছা, তো স্কাল্প স্কোৱাডৰ ইউ এছ পিটো মোক কোৱা। ইউ এছ পি যেনেকৈ ক'লোঁ আমি, লাইক উইল মেইনলি ফ'কাছ অন মেডিকেল পপুলেশ্যন। সেইটো হৈ গ'ল আফটাৰ ডেট, সেইটো ক'লে এটাটো ক'লে। তো এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট উই আৰ ফ'কাছিং অন মেণ্টেল হেল্থ। আমাৰ লগত এটা সেইটোও ক'লা নাম নকওঁ, মানে ইয়াতে তো ইউ এছ পিৰ লগত আৰু কি আহি গ'ল তোমাৰ, মানে স্কাল্প স্কোৱাডটো কাৰ্টৰ কাৰণে হয়, মানে লাইক ফৰ হোম লেডিজ। সেইটো পিছত মই ইউ এছ পিটো কোৱা। এই দুটা হৈ গ'ল, এটা হৈ গ'ল মেণ্টেল এৱাৰনেছ, মেণ্টেল এৱাৰনেছ এটা হৈ গ'ল, মেডিকেল পপুলেশ্যন এটা হৈ গ'ল। আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট যোনটো ধৰাচোন জেনেৰেল পপুলেশ্যনে কেনেকৈ কি কৰিব, এইকেইটা হৈ গ'ল। মেণ্টেল ফিটনেছটো জেনেৰেল পপুলেশ্যন ইমান কিয় লাগে মেণ্টেল ফিটনেছ? মই ঘৰ যাই কিনে মই শুই গ'লে মোৰ মেণ্টেল হৈ যায়, সেনেকৈ ভাবি তুমি ইউ এছ পিটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব? মই বুজি আছোঁ। আমাৰ দুটাৰ সদায় এটা গ'ল আছিলে, উইল বি এ লাইফষ্টাইল কোচ। অ'কে, ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ, অ'কে, ইয়াত ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ আছে, ইয়াত লাইফষ্টাইল কোচ আছে। ফিটনেছ ট্ৰেইনাৰ ঠিক আছে, তো লাইফষ্টাইল কোচটো মানে অকণ ফেচিনেটিং নালাগে, একদম এই লাইফষ্টাইল কোচ চাউণ্ডে বেলেগ হৈ যায় মানুহ। তো সেইটো সদায় গ'ল আছিলে। তো আমি ভাবিছোঁ কি এতিয়া আপুনি যিমান কয় এটা মানুহক দেখি লাইফষ্টাইলটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব সি নকৰে, এই ছাৰ আমাৰ টাইম নাই, এইটো নাই সেইটো নাই, সি এক্সকিউজেছ দিবই। তো মেইনলি এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ লাইফষ্টাইলটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ? কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ? चेंजिंग हिज थॉट प्रोसेसेस, वो तो मेंटल में पड़ गया। उसके अलावा हिज थॉट प्रोसेस इज चेंजिंग, दैट मींस ही विल चेंज हिज लाइफस्टाइल। জেনেৰেল পপুলেশ্যন তুমি কেনেকৈ কৰিবা? ইয়া ওৱান থিং ইজ ডেট যোনটো প্ৰভাসে ক'লে এতিয়া মাৰ্কেটিং টিপছ হিচাপে যোনটো সি ধৰক তেখেতে ক'লে যে সেইবিলাক তোমালোকে ট্ৰেইনাৰৰ ওপৰত ইমপ্লাই কৰিব পাৰা। লাইক চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহি গ'ল যে হু কেন জইন স্কাল্প স্কোৱাড? এ বডি বিল্ডাৰ, এ পাৱাৰ লিফটাৰ, a CrossFit athlete, any sports, general population, medical population, anybody can join Sculpt Squad because we are equipped with the best equipments and best training professionals. But they should have the commitment. Just step one रहता है कि हाँ यार तो मैं sacrifice करूँगा. And also they must have realistic fitness goals. If they want to take their fitness level to the next step, they must have realistic fitness goals. लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को 3 महीने में 15 किलो कम करना है, ऐसा नहीं। तुम्हारा गोल 15 किलो कम करना नहीं होगा, तुम्हारा गोल होना चाहिए व्हाट यू विल डू। तुम डेस्टिनेशन को बाद में पकड़ो, पहले एंजॉय द जर्नी। आर यू 100% श्योर दैट यू कैन लूज 15 kilos in this journey? Will you love it? If you won't love it, you won't do it. Is it worth it?
মই এটা ধুনীয়া লাইন মনত পৰিছে মানে এইটো কথা আৰু সফৰ মঞ্জিল মত হে সফৰ কা মজা सफर का मजा ए वाह कोबस नहीं वो सफर में धूप तो होगी छाव भी होगी बारिश भी होगी তো এতিয়া তোমালোকে ট্ৰেইনাৰ্ছৰ কাৰণে কি কৰিছা দিছ ইজ ফৰ দ্য ক্লায়েণ্টছ নাও ট্ৰেইনাৰ্ছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কেনেকুৱা হ'ব বা তাৰে সিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব ট্ৰেইনিং পেটাৰ্ণ মডেলিষ্ট ট্ৰেইনিং মডেল আমি ক'লো অবভিয়াছলি ট্ৰেইনাৰ্ছৰ কাৰণে কিবা প্ৰট'কল বা কোনটো ধৰণৰ ৰাখিবা এতিয়া বাকী লাঞ্চ কিবা কিবি মানে এতিয়া বাকী জীৱন কেনেকুৱা হয় ট্ৰেইনাৰ আহে চাৰ্টিফিকেট নোহোৱাকৈ কৰি আছে কিছুমান চাৰ্টিফিকেট অফিচো কৰি আছে কিছুমানে চাৰ্টিফিকেট নোহোৱা মানুহকো দৰ্শন উঠাই লৈ গৈ আছে পাৰিছে মেনেজ কৰিব পাৰিছে বা চাৰ্টিফিকেট হোৱাৰ পিছতো গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই তো তোমালোকৰ স্কাল্প কৰাত মানে বেনিফিট কেনেকুৱা হ'ব ধৰাচোন মই এটা মই বা গোপাল গ'লো তুমি দুটা চাৰ্টিফিকেট পচন্দ কৰিবা ঠিক আছে মই এজেঞ্চি কৰিছোঁ ইউ এজেঞ্চি কৰিছে তো এতিয়া তাতে যদি যাওঁ আমি স্কাল্প কৰাৰ কিবা এটা ভিজনলৈ যামতো স্কাল্প কৰা কৈছোঁ তাতে তোমালোকে কেনেকুৱা অপৰচুনিটি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিবা ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ট্ৰেইনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আমি মেইনলি আমাৰ একাডেমিতে ফ'কাছ কৰিছোঁ ফিটনেছ একাডেমি আমি তাৰ পৰাই চব হায়াৰ কৰি আছোঁ এণ্ড পংকজ দা গোপাল এণ্ড কান্তিমা দা দেৰ হেল্পিং আছ এ লট মানে ট্ৰেইনাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে প্লাছ পুলক ছাৰটো আমাৰ গুৰু হয় তেওঁ চব অভাৰঅল চাই আছে চব বস্তু চ' আমি ট্ৰেইনাৰ্ছক বিচাৰিছোঁ যে সিহঁতি কণ্টিনিউং এডুকেশ্যন কৰি থাকে উই ডোণ্ট ৱান্ট ইফ তুমি একশ্যন কৰি লৈছা চিপিটি কৰি লৈছা নাও ইউ আৰ দ্য বছ তুমি জানটাক চাব পাৰা সেনেকৈ নহয় you have to go more deep action কৰিলা এছএনএছ কৰিলা ষ্ট্ৰেংথ কণ্ডিশ্যনিং কৰিলা আৰু কৰিলা নিউট্ৰিশ্যন কৰা কৰি থাকা যিমানলৈকে পঢ়িব পাৰা কৰি থাকা about the personal trainers I would like to say and this is very important to share about personal trainers right क्योंकि इंडिया में स्पेशली बाहर का कंट्री में इट्स वेरी इवॉल्व्ड एंड व्हेन इट कम्स टू पर्सनल ट्रेनिंग बट इंडिया में क्या है ना एक इंसान जब पर्सनल ट्रेनिंग का करता है तो इट्स अराउंड 6 months to 12 months डिपेंडिंग ऑन द कैसा कोर्स है तो उसको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है अब मेनली उसको डील होता है बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी में मेनली डील होता है कि एक्सरसाइज कैसे काम करता है क्यों करना चाहिए कैसा टाइप का और फिर ना एक आदमी जब सीपीटी मिल जाता है ना तो दैट पर्सन थिंक्स कि वो हो गया है अभी नाउ ही कैन अर्न मनी एंड वो बट सिंस उधर में आ गया तो उसका नेक्स्ट स्टेप जो है उधर में कभी हाफ अगर 1 करोड़ का पॉपुलेशन है ट्रेनर्स का तो 50% या फिर 60% उसके बाद का नहीं सोचेंगे दे विल वो लोग लाइक इवन एज्ड उसमें भी दे आर ट्रेनर्स बट नो डिसरिस्पेक्ट इट्स गुड पैसा कमाने सब पैसा आ रहा है अगर अच्छा मिल रहा है तो वाई टू लाइक फिर से क्यों करना लेकिन है ना स्पेशली इन फिटनेस इंडस्ट्री स्पेशली इन फिटनेस प्रोफेशनल्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ना 2 कोर सब्जेक्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट ओके एक हो गया सीपीटी जिसमें पूरा बायोमैकेनिक्स किनेसियोलॉजी ये सब हो जाता है और सेकंड जो है ना उसको वो हम लोग का न्यूट्रिशन बहुत आदत है क्योंकि ये दोनों तो जरूरी है बहुत तो डिपेंडिंग अभी मिनिमम उसमें बोल रहा हूँ कि 1 year तो लग जाता है इसको पढ़ते और तभी आप सीपीटी के बाद ही ज्वाइन कर लेते हो देन यू हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यू हैव सीपीटी का बायोमैकेनिक्स एंड देन न्यूट्रिशन ये दोनों मिल गया अभी उसके बाद मैंने इधर में और ट्रेनर्स रुक जाते हैं पहले था रेट 60% से इधर में बाकी का जो 40% में से 20% इधर में रुक जाते हैं कि न्यूट्रिशन मिल गया और सीपीटी हो गया बस उसके बाद आता है जो जिसको हम बाहर में टर्म्स बहुत फेमस है एलाइड ट्रेनर्स तो एलाइड ट्रेनर्स में क्या होता है कि ये दोनों तो कोर फाउंडेशन ये तो चाहिए अपडेटेड पूरा फुल अप टू डेट चाहिए देन उसके बाद एलाइड ट्रेनर्स का एक ऑप्शन आता है वो जिसको एलाइड ट्रेनर्स कहलाया जाता है उसमें आ जाता है कि नाउ यू विल हैव टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन तुम किस चीज में स्पेशलिस्ट हो न्यूट्रिशन और इसमें तो तुमने देख लिया अभी तुम किस में हो कुछ लोग का आता है स्ट्रेंथ बोल के बैकग्राउंड आ जाता है जिसमें स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग टैक्टिकल कंडीशनिंग उसके बाद बहुत सारा मतलब स्पेशली रिलेटेड टू मतलब स्ट्रेंथ एथलीट्स एंड वो सब दूसरा हो जाता है एडवांस जिसमें आ जाता है करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी रिहैबिलिटेशन जिसमें मतलब वो थोड़ा ऑर्थोपेडिक उसमें चलाता है कुछ लोग चला जाते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशन में कुछ लोग मतलब फुल्ली न्यूट्रिशन में दे इन्वॉल्व कुछ लोग आ जाते हैं साइकोलॉजी में जब चला जाता है बिहेवियरल थेरेपी ये वो क्योंकि ये सब जरूरी है तो डिपेंडिंग ऑन इसमें तो इसमें भी करते एक एलाइड ट्रेनर बनते उसको भी अराउंड 1 year 9 months या फिर 2 years फुल फ्लेज मास्टर्स डिग्री में जितना पढ़ना पड़ता है ना मेरे को लगा था यार मैं एक सीपीटी बन गया मतलब हो गया मेरा अभी टिल डेट मेरा 6 साल 7 साल हो गया हमेशा कुछ ना कुछ सुबह को उठ के आधा घंटा एंड यू गाइस मैंने देखा है स्टेटस तुम लोगों का लाइक पूरा दिन फिजिकल वर्कआउट करके एंड देन ट्रेनिंग करा के डीलिंग विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स वो सब करने के बाद रात को आई थिंक यू गाइस आर स्टडीइंग एट 2 o'clock 3 o'clock
मैंने देखा था मैंने उसमें देखा था कि मैंने देख के ये भी बोला सनी को कि यार ये लोग दे आर डूइंग द रियल थिंग। I will add this thing that एक दिन क्या हुआ एकेडमी का पेज देख रहे थे हम लोग शायद, तो वहाँ पे सर ने पंकज के बारे में बोला that this guy is he sleeps at 3 a.m. he wakes up at 6 a.m. so he is only getting 3 hours of sleep and he is still the best at his profession. Exactly, strength and conditioning. That same evening मैंने प्रभास को बोला if this guy can do it why can't we? Why can't we? मोटिवेशन मिला, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के 3 बजे तक ऐसे बट we'll make it productive. We'll make it productive. हाँ, तो उसके बाद वो एलाइड ट्रेनर बन जाता है अराउंड 2 इयर्स का स्टडीज में, उसको थियोरेटिकल आ जाता है, बाय द टाइम उसको अच्छा खासा वो भी आ जाता है। लास्ट में आता है एकदम लास्ट जो फाइनल आता है मास्टर ट्रेनर की, लाइक दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन अ पर्सन कैन हैव, उसके बाद भी पढ़ना पड़ता है। तो वो मास्टर ट्रेनर पाने के लिए पहले तो ये 2 बेसिक कोर्स सब्जेक्ट प्लस 6 स्पेशलाइजेशन, हाईली इक्विप्ड 6 स्पेशलाइजेशन। आप लोग खुद ही सोचो, इतना सब पढ़ने के बाद एक आदमी का मेंटल वो इवॉल्व हो जाता है, उसके बाद वो सिर्फ आपको 15 दिन में हो जाएगा सब कुछ, वो नहीं आता है। मैम आइए बैठिए 45 मिनट्स बैठिए, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट द थिंग इज। और एक लास्ट ये इसको ख़त्म करने से पहले बोलता हूँ कि मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि 3 फैक्ट पढ़ा था, मतलब तीनों का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा कोर फाउंडेशन है जिससे मैं हेल्प करता हूँ। पहला हो गया कि अ पर्सनल ट्रेनर सीज 1000 टाइम्स मोर स्क्वाट्स देन अ फिजियोथेरेपिस्ट। एग्जैक्टली 1000 टाइम्स ज़्यादा वो We are on the field always. वो फिजियोथेरेपिस्ट जो आइसोमेट्रिक वो सब मतलब जो भी है वो सब होके अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस कर देता है, लेकिन एक पर्सनल ट्रेनर हमेशा वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वाट्स, कोई आता है विद नीज आगे चला गया, कोई ग्लूट्स ये हो गया। और सेकंड कोट इज इफ योर BMI, और यही मेरा पर्सनल सर्विस है, नॉट लाइक स्कल्प स्क्वाड, नॉट लाइक सनी एंड मी पार्टनरशिप, मेरा पर्सनल वो है कि इफ यू आर टेकिंग ट्रेनिंग फ्रॉम मी then I'll have to first make sure कि your BMI is in the range, कि वो BMI रेंज चाहिए, उसके बाद आप जो भी है वो मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन हम लोग को पहले फोकस BMI करना है, क्योंकि यही फैक्ट मैं न्यूट्रिशन का पढ़ते समय मैंने देखा था कि if your BMI is above 30 then you have 70% chances of getting hypertension। एक बार हाइपरटेंशन लग गया तो विद इन 1 year you will start to take medication, क्योंकि चाहिए होगा, विदाउट दैट तो you cannot survive। एंड डॉक्टर को भी वही लगता है कि मेडिकेशन दूंगा बट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग अबाउट हिज हेल्थ, डॉक्टर को नहीं पता होता कि दे डोंट डू। एंड एक साल अगर आप एक मेडिकेशन ले रहे हैं फॉर हाइपरटेंशन, इमेजिन वो कंटिन्यूअसली फॉर 1 year यू आर टेकिंग, आफ्टर दैट 2nd year में वो डोज बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज आपका बॉडी होम्योस्टेसिस में तो जाना पड़ेगा ना, वो तो होम्योस्टेसिस हो गया, उसका मेडिसिन तो हो गया, अब इसको फिर चाहिए 2nd डोज, 3rd डोज, 4th डोज, एंड ओवर द टाइम आप एक ही मेडिसिन लेते गए तो फिर आपका जो गट बैक्टीरियाज होते हैं दैट एक बार कुछ गलत हो गया गट बैक्टीरिया के साथ, विटामिन B6 एंड B12 आर गॉन, अभी एक बार ये दोनों गया तो पूरा का पूरा बॉडी फंक्शन इज गॉन। ओवर द पीरियड ऑफ 5 years आपका इतना प्रॉब्लम हो गया, देन एट लास्ट आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार कुछ तो करना चाहिए था इसके बारे में। अब BMI से एक मतलब क्वेश्चन, और हाँ ये लास्ट और थर्ड फैक्ट ये है कि इट्स ऑल फैक्ट, मतलब हो चुका है ये। थर्ड फैक्ट ये है कि फॉर 1 person वी नीड 8 साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, जो उसको समझाए कि जो तुम सोच रहे हो गलत है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक इंसान जो है उसको 1000 आदमी लोग ने पहले उल्टा पुल्टा बोल चुका होता है। एग्जैक्टली, उसको कहने के लिए 8 साइकोलॉजिस्ट तो चाहिए। मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि कल जिम में क्या हुआ, जैसे old guy, he's in about 55 age, okay, and he was doing his concentration curl with 20 kg. Just imagine. 20 kg concentration curl, and he boasts like this. I don't know mind power. Where he is running there. और then I talked to the owner, भैया ये क्या कर रहा है ये? So he said तू इसको बोलने जाएगा तेरे साथ लड़ जाएगा, छोड़ इसको। So think कितना चेंज करना भी फिटनेस इंडस्ट्री में, है ना? इसलिए तो हम लोग पीपल आर नॉट अप्रोचेबल, इसलिए जैसे यार यू नो हम लोग कम्युनिटी के पीछे भाग रहे हैं, एक आदमी कोई बदल नहीं पाएगा, तो यू नीड अ कम्युनिटी, वी नीड अ कम्युनिटी। यार ये जो बहुत ओनर बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल है ইয়াতে সেইকাৰণে মেনেজমেন্ট বহুত দৰকাৰ। এক্স্যাক্টলি। তো ডাইৰেক্ট ওনাৰে জিম খোলে, ট্ৰেইনাৰ হায়াৰ কৰে, হেড ট্ৰেইনাৰ ৰাখি দিয়ে, এইটো এনেকৈ নহয়, এইটো একচুৱেলি বহুত টাইম है भी আৰু strategies like that, प्रोसेस like है, rules हिसाब like से that। एक प्रोसेस होता है ना कि सब सबको जाना है, ट्रेनर कौन बनेगा, क्वालिफिकेशंस क्या तो होगा। हमारा ये हमारा पंकज यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग BMI, तो आ रहा है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि তাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, মানে স্কাল্প স্কোৱাডত মানুহ জইন কৰিব লাগে, ইমানখিনি ইয়াতে কৈছে সাৰ্ভিস দিছে। এক্স্যাক্টলি মোৰ এতিয়া মানে জইন কৰিব লাগিছে।
ফিজটো নৰ্মেল জিমৰ নিচিনা হ'ব বা 500 বেছি হ'ব বাট ইমানখিনি এইটো ফিজ 10,000 দিলে 1000 বেছি হ'লে 10,000 দিলে ইমানখিনি সাৰ্ভিসটো ইমানখিনি কেইদিনমান আগত প্ৰভাস আৰু সানি দুজন আহিছিলে তো ছাৰৰ লগত ক্ষতি নাই বুলি 1.5 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা কথা পাতে তো প্ৰভাস আৰু সানি পুলক ছাৰৰ তোমালোকৰ এই আইডিয়াটো ধৰচোন অবভিয়াছলি তেখেতৰতো গাইডেন্স পাইছে তেখেতৰ পৰা তুমি অলপ কেনেকুৱা হেৰি ধৰচোন এপ্ৰ'চ কৰিছা অবভিয়াছলি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে তো সেইটো অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিবা নেকি তেখেতে ধৰচোন অবভিয়াছলি বহুত হেল্প কৰিছে তোমালোকক তুমি জানা হেৰি তো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভালেই আৰু কেনেকুৱা সেইদিনা আমি যিদিনা ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি গম পালোঁ যে এনেকৈ এটা আইডিয়া আহিছে তো দ্য ফাৰ্ষ্ট person whom I informed was Pulak sir. मैं पेनू निकलो sir এনেকা এটা গুড নিউজ দিব লাগে sir কোৱা কি গুড নিউজ sir কোৱা কি গুড নিউজ sir টাইম লাগে মই ক'লো যে sir এজন আমি ইনভেষ্টৰ পাইছো and she is investing on us বে বঢ়িয়া কথা বোলে ভালে যেন বহুত মোটিভেট কৰিলে লাইক I don't know but আগত মোক কোনো এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ টাৰ্মটো ইউজ কৰা নাছিলে but sir was the first guy who told me you were an entrepreneur more kiba value was like if I am getting 40,000 as a salary if someone is investing 20 crore on 2 crore on us 2 crore on us that's our valuation now to both proud feel hoise like sir this hete to hedna sare kole plus bahut mix asile je trainer eta ki koribo lage sir hetu bujale management kena koribo lage titao bahut mix asile moi titao bhabisile moi bahut jano sare he breaks the whole thing and like nah this is the right thing but sorry ki korna he makes you self realization ki bhul ase aru ami to we blindly trust that person nijor guru korai trust koribo lage ei to guru ase ami yar kotha hunim heneke nohoy guru mane jodi carpentry table eta carpentry banai ase duta carpentry mili beya kori dibo eta carpentry only so he will shape the whole thing so sir we blindly trust that man sir বহুত কিবা ক'লে শিকালে বহুত কিবা কিবি ক'লে এইবিলাক এপ্লাই কৰিবা ক'লে এপ্লাই চাওঁ শিকাইছোঁ কিমান এপ্লাই কৰা কিমান হি অলৱেজ গিভ দেট লাইন চ' দেট উই কেন ইম্প্ৰুভ মোৰ তেতিয়া ভাল লাগিছে মানে মইতো কওঁ উইকলি আমি যদি এবাৰো লগ কৰোঁ ন ছাৰক আমাৰ কোন কোৰ্ছ যেনেকৈ খুলি আমাৰ দিমাগ খুলি যায় প্ৰভাসৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্ৰভাসে প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিলে funny is he started talking my he direct घोड़ी दौड़ लेते हैं वो इसको क्या हुआ वही तो कॉलेज खत्म हो गया सब पढ़ाई भी चल रहा है लेकिन एक रिग्रेट रह गया कि आई डिडंट स्टडी एंड मोटा कोई स्लो एडवाइस दिसलो जे भाई तेरे को कहीं से भी सर्टिफिकेशन करना है ना तो स्टेट पेपर फिटनेस एकेडमी ज्वाइन कर बिकॉज़ मोटिरा रिसेंटली कोरिया से वो सबके होड़ बसलो आई वाज ओनली 19 इयर्स किती होला আছিল 19 or 20 years মই 2018 ত কমপ্লিট কৰিছো 18 এই 5 বছৰ হ'ব এতিয়া মাছে হ'ল I am 24 now বুঢ়া হৈছে লাষ্ট লাগে প্ৰভাসৰ কি 24 26 I think yeah he's my age then हेतु है उनके like personally केत्या वो कौन सा एकलव्य का स्टोरी था ना कि एकलव्य बाप रे नहीं ओके फाइन personally केत्या पढ़ना है but always had that respect कि यार नाम तो सुना है and I know मतलब एक बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है मेरे को खुद ही आवाज आ रहा था कि this is the person and Pulak sir already knew about him মানে তেওঁ জানে যে প্ৰভাস সিনহা বুলি কোনবা আছে তো এদিন আহিছিলো আমি একেবাৰে মই ৰুগালি is a very good friend তো মই আহিছিলো এদিন কথা তাৰ কথা ওলালে তো মই গৈ পেলাই ফোন কৰি তাক ক'লো যে ভাই তেरे को तो सर पहचानता है पहले से तो क्या बात कर रहे हैं everyone है सरल सी बात है इमोशनली आई न्यू हिम मतलब इमोशनली ऐसा नहीं था कि कभी मिला नहीं है ऐसा आई ऑलवेज हैड दैट रिस्पेक्ट ऑलवेज न्यू कि मतलब है सर है इमोशनली है बट फिजिकली कभी इस रियलिटी में नहीं मिले थे तो वो फर्स्ट दिन था और मेरा सबसे पहला इंस्टिंक्ट गया कि यार आज नहीं लिया ना तो फिर कभी नहीं so the thing is that BMI चलो ऐसा क्वेश्चन से खुद ही रहा BMI কি আছে উলুৱা লাই বলে BMI क्वेश्चन तो इट वाज माने মই लॉकडाउन के टाइम में एक आर्टिकल लिख रहा था लाइक द डिफरेंस बिटवीन ओबेस एंड ओवरवेट सो मेरा ये क्वेश्चन ये है कि आपने जब BMI आपके जो मेन लाइक आपका जो मेन प्रोटोकॉल है लाइक आप BMI मेजर करके आप क्लाइंट का जो फिटनेस लेवल है वो आप देखते हो राइट फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस BMI का इंडिकेटर तो चेक तो वही बोलना चाहता कि नो एक्चुअली BMI क्या है ना एक जनरल टर्म में आ गया था कि मतलब
अभी जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी फिटनेस इंडस्ट्री तो अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, बहुत बैक इन 1940-30 कब से चल रहा है, 80s तक, मतलब बहुत पुराना है ये फिटनेस इंडस्ट्री। बट वो उस टाइम पे फिटनेस बोल के नहीं बोलते, वो लोग हेल्थ या फिर मे बी मेडिकल कुछ ऐसा टर्म होता होगा। तब उधर में बोला कि यार अभी इतना सारा पॉपुलेशन को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, इतना सारा पॉपुलेशन है, अभी इन लोग का हेल्थ हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो रिसर्चेज हुए, बहुत सारे सर्वेज हुए, बहुत सारे ये हुए, तब रियलाइज हुआ कि एक सिस्टमेटिक वे में जाने के लिए एक BMI टर्म दे दिया बॉडी में, जिससे ये पता चला कि एक हाइट और इसमें मतलब सर्कमफेरेंस में कैसा, उसमें एक पैटर्न पाया गया कि जो एक जनरल हेल्दी उसमें था, उन लोगों को मतलब होता है, ऑब्वियसली मेडिकल कंडीशन इज वेरी कॉमन, हो जाता है। बट कुछ डिजीजेस थे ना जो लाइफस्टाइल रिलेटेड, लाइक शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन, इट्स नॉट, मतलब एक इंसान को अगर नहीं होना चाहिए तो उसको नहीं होना चाहिए, बट वो होता क्यों है? बिकॉज ऑफ बॉडी फैट। आप लोग को पता ही होगा, लाइक फैट होता है, फिर वो इंसुलिन के साथ कुछ तो साइंटिफिक नहीं चाहिए। बट देन दे केम टू रियलाइज कि वो जो इतना हाई BMI में थे, वो लोग का मतलब बहुत सारे डिजीजेस अट्रैक्ट कर रहे थे रिलेटेड टू दिस। देन वो लोग ने देखा कि कुछ जो एथलीट्स थे, लाइक जो बॉडी बिल्डर्स हो गए, पावर लिफ्टर्स, ये सब जो मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे, उन लोग का मसल मास तो गेन हो रहा था, उसके वजह से तो वेट भी गेन होना शुरू हो गया। तो देन मतलब आई डोंट नो वो लोग ने बोला है कि नहीं ऐसा, बट इट्स लाइक कॉमन सेंस के हिसाब से, लाइक इट्स वेरी नॉर्मल कि एक इंसान अगर वो है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल मी, आई वेट अराउंड 85-89 ऐसा कुछ है, तो आई एम वेरी हेल्दी, मतलब मैं कार्डियोवैस्कुलर के नाम पे मैं दौड़ लूँगा विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं अपना बॉडी वेट लिफ्ट कर देता हूँ, वो भी ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सब है, बट स्टिल मेरा BMI में अभी इन डेट ओवरवेट दिखा रहा है। तो BMI इज नॉट द वो, but compared to a person who is having a sedentary lifestyle, उसके लिए is very like I want to add one more thing कि लोग diabetes, hypertension, thyroid, PCOD in SMEs they call it बेमार, तार तो diabetes बेमार होइছে न, it's not a बेमार, it's a lifestyle disorder we can say. I don't know what's the proper term for lifestyle disorder in SMEs, but disease and disorder are two different things. Don't you think so? My dictionary will not get back to you. But anyway, so এতিয়া আৰু এটা স্কাল্প স্কোৱাডত আমি ইমান বুজি পালো, ঠিক আছে, ভিজন গম পালো, মিছনটো গম পালো, চব গম পাই গ'ল আৰু গম পোৱা নাই, এটা গম পোৱা নাই, ইকুইপমেণ্টছ কি আনিব পাৰোঁ? Equipments এইটো মেটাৰ নকৰে, ইকুইপমেণ্টছ মানে general population মানে ইকুইপমেন্ট সিলেকশন প্ৰসেছটো কি আছে ইকুইপমেন্ট সিলেকশন পেপাৰটো আমি এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা ভাবি আছিলোঁ, এটা বহুত ভাল লাইন কৈছিলে, কোৱালিটি অৰ কোৱান্টিটি। So we focus more on quality. So আমাৰ লগত বহুত ভাল ইকুইপমেণ্টছ আছে for body builders, they will love it. কোনটো ব্ৰেণ্ড মানে ব্ৰেণ্ড প্ৰমোশ্যন হ'ব, তাই এইটো কাটি দিম, এনে এইটো কাটি দিম, মই বুজিছোঁ। So bodybuilders will love it. Powerlifting और CrossFit का एक्स्ट्रा सेक्शन दा আছে, उधम मचाओ तुम घर रहने का टाइम पूरा। बॉडीबिल्डर्स बहुत भालो, ग्लूट्स और मशीन बहुत कम माने रखे गुवाहाटी, बट वी हैव अ ग्लूट मशीन, लाइक की फीमेल्स they demand it, so we want it. So here আমি কিছু এটা গ্লুটস और मशीन, देन powerlifting and extra section, zumba and yoga কাৰণে permanent ambience level আপনি ঘুমাই গ'ল ন, একো বাহিৰৰ হাল্লা নাই, জাষ্ট you will see Buddha in your dream, আৰু চকু মন পেলাই বুঢ়া দেখাব, এনেকৈ এম্বিয়েন্স থৈ দিছোঁ আপোনাৰ কেফেটেৰিয়া লগত হেল্ডি ফুড পাব। তো এনিবডি এজ পাৱাৰ লিফ্টাৰ, এ বডি বিল্ডাৰ, এজ এ ক্লায়েণ্ট হু নিড টু lose his weight, then ধৰক মেডিকেল পপুলেশ্যন, anybody who think fitness is necessary in my life can join Sculpt Squad. और इक्विपमेंट्स, रिगार्डिंग इक्विपमेंट्स, मैंने कुछ इक्विपमेंट्स यूज़ किया था, आई थिंक इट वाज चेस्ट प्रेस मशीन, बैठ के ऐसा करके, आई थिंक वर्टिकल चेस्ट प्रेस, इंक्लाइन में, हाँ इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। तो आई वाज डूइंग इट, मैंने पूरा फुल प्रॉपर वार्म अप एंड प्रॉपरली डूइंग माय एक्सरसाइज। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो नया मशीन है, आई शुड यूज़ इट। तो मैंने जब वो यूज़ किया तो विद इन सेकेंड्स आई कुड रियलाइज अ क्लिक इन माय शोल्डर, तो मे बी दैट वाज बिकॉज ऑफ द बायोमैकेनिक्स, शायद एंगल एंड कुछ का प्रॉब्लम, तो उसी में दैट आल्सो डिपेंड्स कि कौन सा कंपनी से था, दैट कंपनी वाज नॉट दैट गुड, दैट मैटर्स अ लॉट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं आप बोले शेफ मिला, शेफ हाँ मिला, ओए शेफ मिला, तेरे को बोलूँ कि क्या मैं शेफ मिला, तो फाइनली शेफ मिल गया हम लोग का चैनल पे।
अभी भी पता बट चला पार्टनर फाइनल नहीं किया, देखना पड़ेगा वो कैसा है। ले हम लोग को भी मिल गया इंस्टीट्यूशन खराब कर दिया तो खत्म। ঠিক আছে, এতিয়া একদম সবাই তিনিটা মিলি কিনে তই ইণ্টাৰেষ্টিং একদম মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধিছোঁ, কেতিয়া খুলি আছে জিমটো? এতিয়া খুলি আছো আমি নিজৰ ফিক্স কৰিব নোৱাৰো, বাট মানে আমাৰ টেণ্টেটিভ ডেট এটা দি দিয়ে, মানুহবিলাকো ৰখি আছে। আমি জুনৰ ফাৰ্ষ্ট উইক most probably. Okay, people. So be admissions ready. are open. Call me if you want admission or if you have any queries. We have pretty interesting discounts. We have Yes. discounts. It's And like a pre-opening sale. You're even marketing language at home. It's a pre-opening sale. Okay, so marketing में वो पढ़ा था बहुत पहले जिम it is like मैं हिंदी में पूछता हूँ मतलब उसमें इजी हो। तो अभी जैसे कि ऑब्वियसली जिम को और भी डेवलपमेंट करने के लिए आपको जिम क्लाइंट को सर्विस ज़रा देने के लिए हमें ट्रेनिंग पे ज़रा इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग हम लोग को ज़रा थोड़ा फोकस करना होता है। तो एक होता है जिम ट्रेनिंग, लाइक आपका जिम ट्रेनर्स ट्रेनिंग, फिर हाई क्लास मैनेजमेंट, फिर आपका लाइक हो गया प्रॉपर हाइजीन। तो इन सब के ऊपर आपका मतलब लाइक इन सब के ऊपर आपका क्या मतलब राय है? मतलब ये हम लोग स्किप कर रहे हैं, क्रांति में भी यही क्वेश्चन था। तो एकेडमी से हम लोग ट्रेनर्स ले रहे हैं एंड वी आर कोलैब कर रहे हैं, एग्जैक्ट टर्म बोल रहे हैं तो स्टेट लिपर फिटनेस एकेडमी से আমি কলেব কৰি আছোঁ ছাৰৰ লগত এণ্ড ছাৰ told us that he will come and guide the trainers, not only sir, the whole team will come and guide our trainers. They will teach the trainers, not only trainers but we want knowledge too. Exactly. We both are not like we know everything, we still don't know many things. We like 99%. you know everything but still don't know anything. थोड़ा तो बिल्कुल छूट गया। I heard so. मतलब एक चीज़ है लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, खत्म नहीं होता कभी। Exactly. Go. Learning. I have to share a story, okay? It is a book of Sadhguru called Inner Engineering. I don't know if you are aware of that. There's this famous story of Aristotle. Do you know Aristotle? Yeah. He's a great, you can say, educationist or psychologist. Philosopher. He's everything. In Greek, he is everything. He is a mathematician. So I'm from anthropology background, so he's the father of anthropology, okay? So one day what happened, he was too frustrated. What frustrated হৈ গ'ল, ইমান প্ৰব্লেম আছে লাইফত, মানুহৰ লাইফত, মই ওলাই যাম চব সলভ কৰিম। এটা হয় ন, আমাৰো হয় ন, ইমান প্ৰব্লেম চবেই ৱেইট লছ কৰিব ব'লা ৱেইট লছ কৰাম চব এনেকুৱা হয় ন। এদিন তাৰো এনেকুৱা হ'ল হা, তো সি ওলাই গ'ল খোজকাঢ়ি আছে চবৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিবৰ কাৰণে। সেই পিছত গৈ পেলাই সমুদ্ৰৰ মন্দিৰত চা, সেই দেখিলে এজন মানুহে কি কৰিছে, এটা চামুচ দি গাঁঠা এটা খান্দিছে হা, অকণমান সৰু গাঁঠা হ'ব আৰু গাঁঠাটোৰ পৰা সি সাগৰৰ পৰা এক চামুচ পানী লয় ঢালে, আকৌ এক চামুচ পানী লয় ঢালে। তো এৰিষ্টটলে ভাবিলে কি পাগল এইটো কি কৰিছে, সি গ'ল তাৰপিছত কি হ'ল তুমি কিয় কৰি আছা? তো সি ক'লে যে মই এই সমুদ্ৰটো, দ্য অ'চেন, দ্য চি, মই এই গাঁঠাটোৰ ভিতৰত আনিব বিচাৰিছোঁ। একদম লজিক পইণ্ট আৰু একদম স্মাৰ্টেষ্ট মেন। সি ক'লে এৰিষ্টটলে ক'লে তো পাগল নেকি, এনেকুৱা হ'ব নেকি? দেন সি এটা চিম্পল চেণ্টেঞ্চ কৈছে, তই কি কৰি আছ? ইউ আৰ ডুইং দ্য এক্সেক্ট চেম থিং। হিউমেন ব্ৰেইন ইমানো, হিউমেন ব্ৰেইন ইজ লাইক দ্য স্মল গাধা আৰু নলেজ ইজ আ চি। মই চব নলেজ এই গাধাত সোমাব নোৱাৰোঁ, বাট মই যিমান পাৰোঁ মই সোমাম ন। দেন তাৰ কেপেবিলিটিজ ৱাজ শোন দেট ইট স্পুন, মানে তুমি কিমান সোমাব পাৰা সেইটো স্পুন হয়। স্পুনটো বহুত সৰু হয় comparatively সমুদ্ৰৰ পানী। So that man was I don't know his name but এৰিষ্টটলতকৈ ডাঙৰ ফিলচফাৰ আছিলে সি। I think হিপোক্ৰেটাছ না কিবা নাম আছিলে, মই এক্সেক্ট নামটো পাহৰিছোঁ, হিপোক্ৰেটাছ না কিবা নাম আছিলে। কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে, প্ৰাইজো দিয়া হ'ব, সেইটো এটা এক্সট্ৰাকে অফাৰ দিয়া হ'ব স্কাল্পট কৰাৰ। অভিয়াছলি কোনোবাই নাম ওলাই দিলে এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট আৰু। চ' সেইটোৱে যে আমাক যদি লাগে যে আমি চব জানো আৰু আমি চব কৰিব পাৰোঁ লাইফত, আমি নোৱাৰোঁ। বিকজ হিউমেন ব্ৰেইন ইজ লিমিট টু এ চাৰ্টেইন পইণ্ট, মানে আমি যদি চব নলেজ ল'ব বিচাৰোঁ আমি নহ'ব। তো যোনটো ফিল্ডত তোমাৰ চবতকৈ বেছি নলেজ ল'ব বিচাৰা সেইটো ফিল্ডত অনলি কাম কৰা আৰু যিমান পাৰা মানুহৰ লাইফত গ্ৰেজুৱেট কৰি থাকা। অ'কে, বঢ়িয়া। তো আমি আৰু কি কৰিব আছে लास्ट क्वेश्चन तो आपसे हमारे কি কৈছে? ओके सो अभी आप लोग लाइक सकते हैं एट यंग एज लाइक इतना एक बढ़िया प्रोजेक्ट कर रहे हो आप लोग। सो लाइक तो हमारे फ्यूचर यूथ को
तो फीचर लाइक यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप लोग क्या मैसेज लाइक आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सॉरी ये मैं एक बार पूछता हूँ थोड़ा सा वॉइस एक মই লাষ্ট কুৱেশ্যনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট পাহৰি গ'লোঁ চ' পংকজ দাই সুধিছে হোৱাটছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হাইজিন এণ্ড ট্ৰেইনাৰ আপগ্ৰেডেশ্যন তো হাইজিন ইজ অ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেন ইউ আৰ অ'পেনিং জিম বহুত প্ৰিমিয়াম হয় বা ভাষ্ট হয় বিকজ ইয়াত উল্টা ফুল্টা ক্লাইণ্ট নাহে মই পাৰ্চনেলি কৈ আছোঁ যেতিয়া মই লোকেল জিমত আছিলোঁ আই হেভ চিন চাটা উটা মাৰি পেলাই একদম তাত এনভাইৰমেণ্টটো এনেকুৱা আছিলে তাত সেনেকা ক্লাইণ্টছ আহিছিলে বাট এতিয়া য'ত মই ধৰক ইয়াৰলি মেম্বাৰশ্বিপ যাৰ 20,000 15,000 হয় তাত এনেকৈ চাটা ক্লাইণ্ট নাহিব বহুত প্ৰিমিয়াম ক্লাইণ্টছ আহিব দে বিলং টু ৰিচ ফেমিলি চ' অবভিয়াছলি দে ৱান্ট ক্লিননেছ হাইজিন প্ৰপাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ যাৰ ভাল কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ হ'ল আৰু প্লাছ লেংগুৱেজ ভাল লেংগুৱেজটো এটা বেৰিয়াৰ হয় বাট ষ্টিল আজিকালি লেংগুৱেজ ভাল প্ৰিফাৰ কৰে মানুহৰ লগত যদি আমি কথা পাতোঁ মুখটো খোলালৈকে আমাৰ ভিতৰত কি আছে চব গম পাই যায় মানুহে মানে লেংগুৱেজ যেনেকুৱাও হওক একচেণ্ট ক'ব নোৱাৰি বাট লেংগুৱেজত বহুত গম পাই যে আমি কি ভাবি আছোঁ আমি থট প্ৰচেছ সেইকাৰণে কমিউনিকেশ্যন স্কিলছো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হাইজিনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ উই আৰ আমাক চাবলৈ আমি কোনটো টাৰ্গেট কৰি আছোঁ কোনটো পপুলেশ্যন আমি যদি ধৰক ৰিচ পপুলেশ্যন বা আপাৰ মিডল ক্লাছ পপুলেশ্যন টাৰ্গেট কৰি আছোঁ অবভিয়াছলি আমাৰ জিমটো সেনেকুৱা বনাব লাগিব আমি হাইজিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি ট্ৰেইনাৰ আপগ্ৰেড কৰিবই লাগিব ত' দেটছ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট থিং আৰু সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেনেজমেণ্ট ৰাখিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক্লাছ মেইনটেইন কৰিব লাগিব নহ'লে আমি সেইবিলাক ক্লাইণ্টে লুজ কৰি দিম আমি টাৰ্গেট কৰি আছোঁ আৰু মেনেজমেণ্টটো আছে ত' যাৰ নিড হয় যোনটো আমি তাক সেইটোৱে দিয়া নাই ৱাই উইল হি ষ্টে উইথ আছ হি ৱণ্ট হি উইল লিভ তোমাৰ এই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ফিউচাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কথা আধা ইয়াতে কৰি দিলে কি কি চাব লাগিব এইবিলাকতো মানে এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড হৈ গ'ল হাইজিনটো জিমৰ হৈ গ'ল বাট এইটো যদি সি বেলেগত যদি কৰে two thing point बोल दे फिर मैं about to the youth population I would like to say कि देखो even we all are young but हम लोग का बहुत dreams and visions है कि सिर्फ हम लोग को लगता है वो not even our parents कि मेरे को तो अभी भी parents से बोलता है कि बेटा तुम डॉक्टर हो मैं बोला कि नहीं मम्मी डॉक्टर तुम तुम नहीं हो डॉक्टर नहीं I can feel it मैं बोला कि ठीक है मम्मी बन जाएंगे वो भी बन जाएंगे तो अब पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका दिल से ना कभी भी दिल से एक आवाज़ आता है कि यार दिस इज़ फॉर द गुड मतलब इसमें मैं करके मैं कुछ कर सकता हूँ देन ऑलवेज गो फॉर इट लेकिन कभी भी दिल का बात दिल से मत करो दिल का बात हमेशा दिमाग से करो स्ट्रैटेजी दिस एंड दैट दिल जो है तुमको सही जगह में लेके जाएगा लेकिन उधर तक पहुंचने के लिए तुम्हारा ब्रेन चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपका नीज भी प्रॉपर्ली काम करना पड़ेगा दैट मीन्स नीज इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ अगर तुम्हारा हेल्थ भी बहुत ज़रूरी पड़ेगा तो हमेशा दिल से पकड़ो अपना टारगेट्स को दिमाग से उसको स्ट्रेटेजी लगाओ एंड हैव दैट करेज कि हेल्दी वे में अगर पैसा मिल रहा है तो उसको एंजॉय करने का सेकेंड पॉइंट हो गया कि डोंट लेट एनीवन टेल यू कि तुम नहीं कर पाओगे बिकॉज दैट बहुत क्रिटिसिज्म आते हैं यार आज तक मेरे को लाइफ में क्रिटिसिज्म आता है तुम नहीं कर पाओगे तो अगर आपका दिल को लगता है कि आप कर सकते हो तो ठीक है वो सब कुछ सुनो लेकिन एटलीस्ट रात का टाइम पे हैव अ थॉट मिरर में देख के आई पर्सनली डू इट आई लुक एट द मिरर एंड मैं अपने आंखों में देख के बोलता कि यार तेरे को ऐसा बोलते है तू कर नहीं कर पाएगा क्या इतना भी तब मेरे को वो अंदर से आई डोंट नो कौन सा आवाज़ आता है बोलता है कि यार लुक एट योर आईज लुक एट योर बॉडी यू हैव मेड इट इतना आगे तक और आगे तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा टाइम लग जाएगा लेकिन हो जाएगा और तीसरा पॉइंट इज लाइक वही था आई थिंक मैंने लिखा था भूल गया बाकी लाइक हम लोग आज डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में तो मैंने बोला कि पीपल nowadays it's a very common term called smart work okay ठीक है स्मार्ट वर्क बट यू कांट रिप्लेस इट विथ हार्ड वर्क इज मेन लाइक पंकज दा अगर पकड़ लो 3 बजे सो के सुबह 6 बजे उठ के दिस इज हार्ड वर्क दिस इज नॉट स्मार्ट वर्क ही इज डूइंग रियली हार्ड वर्क तो ये करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क ठीक है अभी देखो अबाउट पंकज आई से कि ही इज वेरी गुड एट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ये सब लाइक एथलेटिक फील्ड में तो अगर ये अभी ही इज इनटू अ पॉइंट कि ही नोज हाउ टू डील विद एथलेटिक पॉपुलेशन अभी ये अगर वो हार्ड वर्क रात को 2 बजे के टाइम पे अगर ये पढ़ाई नहीं करेगा दैट मीन्स हार्ड वर्क अगर वो नहीं करके स्मार्ट वर्क करेगा कि नहीं यार आई डील विथ पूरा एथलीट्स का टीम को तो उसका एक नॉलेज गैप इधर में रुक जाएगा तो नहीं कर पाएगा तो वो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम स्मार्ट वर्क वेयर टू वर्क हार्ड doing that thing is smart work so people nowadays focus more on smart work ठीक है smart work है but you must do hard work is the main thing okay next
तो बोलिए कुछ। नहीं और रिसेंटली मैंने जैसे कि बोला आई रीड अ लॉट, तो हेनरी फोर्ड फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, उनका एक बहुत अच्छा कोट है, द ओनली शॉर्टकट टू सक्सेस इज लाइज इन अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. Okay, if I don't know what you need, I can never give you what you need. I must know what you need. Suppose हाँ मेरे को अपना ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बेचना है, नॉट करेक्ट टाइम बट टर्म बट अवेयर करना है, यू वांट टू अवेयर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, बट क्या उसको अवेयर होना है? That's the main thing. If he really needs us, then I can go. ये मार्केटिंग में एक बहुत आजकल फेमस लाइन है ना, sell me this pen. If he doesn't need a pen, why will I sell that pen to him? मैं अपना क्यों टाइम मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ? So ये सब बिजनेस में, रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रदर फैमिली सब में, तो अगर जो सामने वाला इंसान है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सोचो. इफ व्हाट ही वांट्स फ्रॉम यू, don't think about what you can give, what he wants from you, give him to that. The question is the best marketplace. अगर आपके पास क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है, just need a solution आ गया, रॉकेट की तरह जाएगा वो. नेक्स्ट थिंग मैं एक बोल देता हूँ लास्ट. तो ये भी एक मार्केटिंग, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी मतलब आई ओपनिंग जो मेरे पर्सनल लाइफ में मिला है सनी के लिए, एंड इवन यू गाइस एट डीप लेवल में भी हुआ होगा कि अगर आप कुछ पाना चाहते हो और वो किसी को हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स यू हैव अ गुड इंटेंशन. आप लोग का इंटेंशन अच्छा है. अगर हम लोग कुछ पाना चाह रहे हैं तो दैट हैव अ गुड इंटेंशन. तो मैंने ये एक चीज़ देखा है ना, मेरे को मेरे मैनेजमेंट में जब मैंने स्टार्टिंग में जब किया था तो मेरे मैनेजर ने एक चीज़ मेरे को बोला था और उस टाइम पे मैं रोया भी था. आई स्टिल रिमेंबर, मैं टॉयलेट में जाके रोया था कि ऐसा कैसे बोल सकता है. उसने बोला कि प्रभाष यू कैन नेवर मेक इट, फिटनेस इंडस्ट्री में यू कैन नेवर मेक इट बिकॉज यू आर ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ आदमी लोग को कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, गो बेसिक ये वो. तो इसके वजह से हम लोग को लॉस हो रहा है. एट द सेम टाइम हम लोग को तेरे को खुद फायदा नहीं हो रहा है बिकॉज तो क्यों फ्री में सब लोगों को वो सब करा रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे आज टिल डेट में आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल कि पीपल ट्रस्ट मी कि चलो ठीक है. मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि अगर पैसा इधर में से नहीं आ रहा है ना, अगर मैं इसको फ्री में भी करा रहा हूँ तो पैसा उधर में से जरूर आ रहा है. This is the most important thing. तीन पूरा होल यूनिवर्स विल कम एंड बेंड डाउन टू यू. तुम्हारा वो जो इच्छा है पूरा करने के लिए किसी को हो रहा है. और लास्ट में एक फाइनल मोटिवेशन, लाइक सनी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ एज अ बिजनेस पार्टनर. ही इज ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पार्टनर. ही नोज इनसाइड आउट अबाउट लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो एज अ मेरे लिए भी एक मेंटर जैसा है. इवन तो एक ही सेम मेरे से, इवन ही इज यंग बट ही इज लाइक अ मेंटर सब फील्ड में. एंड आई नो कि इवन ही थिंक्स ऑफ मी एज अ मेंटर. तो बिकॉज सब लोग का यूनिकनेस अलग रहता है. तो इसने एक नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल, मेरे लिए वो कॉन्ट्रोवर्शियल हुआ था कि मैंने इसको बोला कि भाई अगर तेरे को महाभारत का कोई एक कैरेक्टर चूज करना है तो कौन सा करेगा. तो इसने बोला कि भाई मैं तो करूँगा कर्ण. और मैं इवन ही इज विलिंग टू मेक टैटू. जब उसका फर्स्ट गोल होगा तो बैक में ही टेक अ कर्ण का वो. तो मैंने बोला कि यार कर्ण तो पूरा लाइफ उसने ही सफर्ड, इवन दो ही वर्कड हार्ड, ही डिड एवरीथिंग बट ही सफर्ड. उसका लाइफ में भी इवन ही गॉट मतलब डेथ भी उसको मिला बिकॉज ही सफर्ड अ लॉट. बट मैंने बोला कि यार अर्जुन का लाइफ कितना अच्छा होगा, मेहनत है लेकिन ही ऑलवेज हैड द सपोर्ट ऑफ कृष्णा. लेकिन स्टिल ही स्टिक टू हिज पॉइंट कि नहीं कर्ण इज द बेस्ट बिकॉज वो एक किसके हाथों में मरा था. एक स्टोरी है लाइक महाभारत. आई डोंट नो अबाउट अदर पर्सन्स ऑफ आवर एज बट वी आर वेरी क्लोज टू रामायण, महाभारत, गॉड. आजकल तो लोग लगे वी डोंट बिलीव इन गॉड्स, लाइक नो वी बिलीव. ओके, सो एक स्टोरी है महाभारत का. लाइक पांडव्स एंड कौरव्स सब उन्होंने अपना शिक्षा कंप्लीट कर लिया. दे केम द पैलेस, ओके, एंड देयर वाज अ सेरेमनी वेयर दे वर डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर स्किल्स. तो क्या हुआ, अचानक से एक लड़का आया एंड ही स्टार्टेड डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज स्किल्स. तो पीपल रिफ्यूज्ड दैट, नो यू कांट डू दैट बिकॉज यू आर नॉट, वी डोंट बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. क्षत्रिय. Okay, you are not Kshatriya, you are Sudra. Then he told a line and it was very close to us, like एक साथ बोलेंगे ये वाला कैमरा में देख के. my valor is in my hand. Only you can change your destiny. No one else can. It's in your hand. अगर तुम चाहते हो कि तुम कर सकते हो, you can do that. So see, he was from a Shudra family. जैसे कि लोगों को पता नहीं है, he is from a Shudra family, but he managed to become a king. No matter how, but he managed to become a king, right? He was called Angaraj.
I'm the Desh ka Raja. Okay, so he managed from a Sukhbindra family. He became a king. Yes. So his will is in his hand. Exactly. But I respect every character. So Bhishma, Dronacharya, Shri Krishna, obviously. But Karna has some personal connection. और एक बार कैमरा में देख के वो एक लाइन जो हम लोग का फेवरेट है, Never keep your eyes off the target. क्या बोलेगा? Never keep your eyes off the target. Okay. एक बार Keep your eyes on the goal. Okay, keep your eyes on the goal. So 1, 2, 3. Never Keep your তুমি এতিয়া ক'লা ন লাইনটো কোৱা বুলি তো এইটো একেলগে এবাৰ হৈ যাইছা নি প্লিজ কেমেৰা your কৰি চাই eyes on the goal. या फिर Never keep क्या ठीक है keep your eyes on the ball. Okay. कब बोला? सो प्रभास এতিয়া ক'লা ন এটা লাইনটো দুজনে একেলগে ক'বা প্লিজ কেমেৰা পিনে এবাৰ চাই এবাৰ কৈ দিয়া দুটাই Keep your eyes on the goal. Always. Pronounce on the goal पे बोला हाँ तो हमार message तो बाकी है so our story से remote story पर share करें message बहुत ही सर message दी सर so আমার মোৰ এজন math teacher আছিল হ্যাঁ math teacher বহুত ভাল YouTube ৰ আছিল বহুত ভাল teacher আছিল math ৰ তেওঁ এটা কথা কৈছে যে learn from everyone always আজি যদি মই লগ পাইছো ন কাবাক ধৰক পঞ্চায়ত লগ পালো পঞ্চায়ত কি নলেজ এক্সট্ৰা কৰিব পাৰি মই বিচাৰি নিলো সাপোজ মই ৰাস্তাত গৈ আছে এটা বেগাৰ হওক বা এটা লো ক্লাছ মানে ক'ব নোৱাৰি বাট দে আৰ ডুইং গুড জব বা ধৰক এটা হাউচকিপিং গাই হওক ধৰক পুৰা প্ৰফেচাৰ আছে আৰু এটা হাউচকিপিং গাই আছে প্ৰফেচাৰৰ বহুত কিবা কিবি শিকিব আছে তাৰ পৰা তোমাৰ তাৰ পৰা শিকিম অ'কে চ' এজন ঋষিৰ কাহিনী শুনাইছিলে তেওঁ এই ঋষি এজন আছিলে হা সেই ঋষিজনে নহয় এটা গাধা যে কয় গাধা ডংকি নিজৰ গুৰু বনাইছিলে ডু নো ৱাই বিকজ ডংকিৰ লগত সহনশীলতা যে কামনেছ ইজ বহুত কাম তাক যিমান মানুহ সি একো নকৰে বাট সি কিক মাৰিলে লাইন মৰি যায় চ' সদায় শিকাইছে যে সহনশীলতা কামনেছ সদায় কামনেছটো ৰাখিব লাগে এট এনি চিটুৱেশ্যন নো মেটাৰ গুড অৰ বেড ইট must not affect your mood or your thought process or changes in your behavior. Okay, entrepreneurs are going to smart work রাখিব লাগিব smart and hard work very important হয় আৰু যদি তুমি কিবা প্ৰডাক্ট বা সার্ভিস দি আছা সদায় ভাবা মানুহ কি লাগে তুমি কি দিব বিচাৰিছা that's not important nobody wants to know you and even important to বেলেগ কি লাগে সেইটো বেলেগৰ কোৱেশ্চনছ কি তাৰ সলিউশন বিচাৰা নেক্সট কামনেছ তুমি কাম হ'ব লাগিব এভৰি সিচুৱেশ্যন ভাবিব লাগিব ইনিশিয়েটিভ ল'ব লাগিব বস্তুটো চাব লাগিব এক্স্যাক্টলি হয় কি ৰিয়েক্ট কৰিলে নহব ৰেসপন্ড কৰা not react respond don't react respond okay so আজি actually আৰু কোৱেশ্চনছ actually আমি আজি ফ্যামিলিৰ কথা নহলে ফ্যামিলিৰ কথা ফানি আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো মই কৰি দিলো किसका এই support কৰিছে লিডাৰ কৰি আছিল ব্যাকহ্যান্ড কৰি সাপোৰ্টটো হলো কিন্তু আমি একাডেমিক বিষয়ে কম কিন্তু মানে ফ্যামিলি সাপোর্ট এনি ব্যাকহ্যান্ড সাপোর্ট আৰু ফ্যামিলি সাপোর্ট হয় মানে বিৰাট কৰিলে কাম কৰিছে আৰু একো নহয় এটো কৈ ৰেগুলাৰটো হৈছে চাওঁ আরে সাল্লা স্যার আমাকে ফোন করে দিব এটা কলটো উঠাই ল কথা ফোন করে কইলো আরে আউটডোর সেশন করা হচ্ছে আমি ফিটনেস ভিজন তো তার ওনার জন্য ফাউন্ডারের জন্য ফোন করে আগে যা তোমাৰো এইটো এয়াৰপ্লেন ৰোড আছে মোৰো এয়াৰপ্লেন ৰোড আছে টেনশন হৈ গৈছে ইহঁতে নাই কি হ'ব কালি এটা মেছেজ ড্ৰপ কৰি দিয়া নেউঠাব আরে তুমি যেটা গুড ইভিনিং ওয়ান অফ ফোন করে ইন্টারভিউ এটা দাও হ্যাঁ আরে সব আপনি একেলগে কৰি আছো ডেভেল কৰি আছো কালি নাহো মই আই তো এই ৰবা এই বৰ্তমান হৈ গ'ল নালাগে এইটো থোৱা সো মোৰ ফালৰ পৰা এইটো লাষ্ট কোৱেশ্চন তো তোমাৰ দুটা ফালৰ পৰা সৰি তোমাৰ দুটাকে কোনি ভাল লাগে না কোনি আপোনাৰ ভাল লাগে সো প্ৰভাস আৰু সনি তোমাৰ এটা লাষ্ট কোৱেশ্চন খুদো তোমালোকে যে ফিটনেস ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহিছা ঘৰৰ মানুহৰ পৰা সাপোৰ্ট মানে পাই আছা নে পাইছিলা পাই এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন মানে একচুয়ালি আমি সাপোৰ্ট পোৱা নাই তো বংকেশ তোমাৰ কনভিন্স কৰিব লগিয়া তো এনেকুৱা অলমোস্ট ৰিলেটেড তো তোমালোকৰ কেনেকুৱা আছে জানিব বিচাৰো আৰু যেতিয়া তোমালোকে আহি গৈছা ফুললি ফিটনেস ইণ্ডাষ্ট্ৰি তো ব্যাক এণ্ড সাপোৰ্ট তুমি কাৰ পৰা পাইছিলা ফ্যামিলি
লাইক মই মোৰ ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰোঁ হা, মই বহুত ভাল হয় পঢ়াত। 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো বেছি নিলিখিবা। কি হৈছিলে, আই টপ মাই ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে 12লৈকে, দেন কলেজ আহিলোঁ, কলেজত আই টপ মাই ইউনিভাৰ্চিটি। দেন টিচাৰ হওক বা পেৰেণ্টছ হওক চবেই ক'লে যে তই ফাৰ্ডাৰ ষ্টডি কাৰণে যা, MSc কৰে এইবিলাক ক'লে। অভিয়াছলি চবেই ক'ব যদি মই পঢ়াত ভাল হয়, দেন আই ছেড নো, টেক এ ৰিস্ক, ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত সোমাওঁ। চ' এইটোত সোমালোঁ। দেন মোৰ মা দেউতাই অলৱেজ ছাপৰ্ট কৰে, বিকজ দে নো ইফ দিছ গাই ইজ মেকিং এ ডিচিজন হি উইল ডু ইট, বাট বেলেগে নাজানে ন। সেইটোৱে। চ' চবে ক'লে যে কিমান পইচা তই ইনকাম কৰিবি এইটো লৈ। এদিন কি হ'ল, মই আই ডোণ্ট নো কি ষ্টৰিটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে নে নাই, বাট এদিন মোক সুধিলে হা মোৰ ৰিলেটিভছ, মই ক'লোঁ যে one day I will earn 1 lakh per month. এনেকৈ বেয়া হাঁহিলে। তো সি যেতিয়া ক'লে ন, এতিয়া প্ৰভাসে কৈছে ন, নেভাৰ লেট এনিৱান টেল ইউ দেট ইউ কান ডু ছামথিং। তো যোনদিনা মোৰ সেইটো মানে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তো যোনদিনা হ'ব মই যাম সেইটো ওচৰত, দিছ ইজ মাই চেক, চি আই হেভ আৰ্ণ দিছ। তো বেক হেণ্ড ছাপৰ্ট য়েছ ফেমিলিয়ে দিয়ে, এতিয়া দি আছে, বিকজ এতিয়া চাইছে যে হি ইজ ডুইং গুড। যেতিয়া আপুনি ভাল কাম বুলি ক'ব নোৱাৰে, যেতিয়া দেখে যে মানুহে আপুনি ছাকচেছফুল হৈ আছে, মানুহে এনেই আপোনাৰ ওচৰত আহিব। বাট ইউ হেভ টু প্ৰুভ ডেট আপুনি ৱৰ্ডি হয় নে নহয়। আৰু এইটো কিটো কথা ভাবিব নালাগে যে ফেমিলি মোক ছাপৰ্ট কৰি আছে নে নাই, যেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰুফ নকৰে যে ইউৰ ৱৰ্ডি, কোনো ছাপৰ্ট নকৰে। প্ৰুভ ইট, ইউৰ ৱৰ্ডি অফ ইট। कितना बार रोया यार, मतलब मैंने बोला ना कि मास्टर्स का पहला दिन कदम रखा ज्योग्राफी में, देन आई वाज लाइक व्हाट इज कॉन्टिनेंटल, नहीं ये तो नहीं करना। देन उसका घर में जाने के बाद मैंने सोचा कि यार अभी वो सब जितना भी डिसीजन लिया, मैंने सोचा कि पैसा अभी कहाँ से आएगा, फंडिंग तो पिताजी ने इधर में पहले ही फेंक दिया इसके ऊपर पैसा, अब क्या। तो मैंने पापा मस्त बैठ के मच्छरदानी के अंदर हवा खा रहे थे। पापा सुनो ना, थोड़ा सा लोन चाहिए था आपसे, पैसा नहीं मांगूंगा, लोन चाहिए, अब मेरे को थोड़ा इतना, इसका एक 6 महीना का कोर्स है, इसमें मेरे को लोन दे दीजिए, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा ये पैसा। सेम थिंग, सेम थिंग। मैंने पापा ने बोला कि पापा इज़ ऑलवेज सपोर्टिव, मम्मी नहीं सपोर्ट करती, पापा इज़ वेरी सपोर्टिव, क्योंकि पापा भी वेंट थ्रू अ लॉट। तो फिर उस दिन मैंने टुक द कोर्स, आई वॉज वेरी हैप्पी, पापा ने भी बोला कि ठीक है। फिर मैंने जैसे मेरे को पैसा आने लग गया, मैं पापा को धीरे धीरे करके लोन चुकाने लग गया, धीरे धीरे करके पैसे भी आने लग गए एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि CPT करने के बाद, वो सब करने के बाद, मतलब एक्सरसाइज फिजियोलॉजी करने के बाद, फिर न्यूट्रिशन में करते करते मैं मम्मी के पास खुश होके गया कि मम्मी यार आई एम डीलिंग विद मेडिकल कंडीशन, मतलब कितना मजा आता है। सोचो ना, आदमी लोग वो हो रहे, मम्मी ने बोला कि वाह मेरा बेटा डॉक्टर है। मैं बोला नहीं डॉक्टर तो नहीं है, थोड़ा कम। अच्छा फिर तो काम नहीं। मैंने फिर उसी में और एक मोटिवेशन मैंने है कि मैंने फिर उसी दिन मम्मी को बोला कि मम्मी आई विल बिकम अ डॉक्टर, मैं अपना नाम के आगे मैं डॉक्टर लगाऊंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। और मैं फिजिकली हॉस्पिटल, मेरा एक पर्सनल गोल है, फिजिकली हॉस्पिटल में बैठ के इन हेल्थ इंडस्ट्री आई विल सिट एंड पीपल विल कॉल मी अ डॉक्टर। मतलब ऐसा कोई वे नहीं है कि एरोगेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट मम्मी को प्रॉमिस किया था मैंने। तो टिल डेट मतलब उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, अभी डॉक्टर बनने के लिए मेरे को चाहिए MBBS MD जो भी है। मैं सोचा कि यार ये सब तो मैं फिर अभी क्या करूँगा, बहुत टफ है, अभी मैं ऑलरेडी आई एम पर्सनल ट्रेनर, अभी ये सब पढ़ना पड़ेगा मेरे को। फिर मैंने सोचा कि दूसरा मतलब स्ट्रैटेजी मैंने बोला ना, दिल मेरा चाहता है कि डॉक्टर बनना, लेकिन अभी ब्रेन कैसे चलाऊँ। तो मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसा करते हैं जिससे कि मैं धीरे से करके मतलब वही एग्जाम देके पास करके डॉक्टर बन जाऊँ। तो मैंने सोचा कि ये सब तो हो गया, न्यूट्रिशन इज गुड थिंग, न्यूट्रिशन में क्लिनिकल न्यूट्रिशन लेके फिर मैं कैन डू वो IDA का एग्जाम देके मैं पास कर दूँगा। तो फिर मैंने देखा कि IDA बहुत टफ होता है। तो फिर मैंने फिर सोचा कि हाँ यार एडमिशन ले लेता हूँ, MSc कर लेता हूँ इसमें क्लिनिकल न्यूट्रिशन में। कौन सा कॉलेज कराएगा मेरे को, यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, तो उसी में से कर लूँगा यूनिवर्सिटी से। फिर देखा तो सब लोग मेरे को बोलते जाओ जाओ जाओ, आर्ट्स का नहीं है, इज्जत नहीं है, ये नहीं है। मैं सोचा कि यार अभी मेरे को अंदर से आवाज़ आ रहा था कि यार अभी यू विल हैव टू टेक साइंस। मेरा एज इतना हो गया कि आई कैन नॉट गो बैक एंड डू साइंस का वो। तो मैंने देखा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत लाइक जेन्युइन तुमको वो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट देते हैं, जिसमें तुमको इंग्लिश वो सब जितना भी जनरल सब्जेक्ट है उसको छोड़ के यू कैन टेक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वो सब। तो मैंने सोचा कि हाँ पहले ये कर लेता हूँ, लेकिन आई हैव टू अगेन गो 1 ईयर का पढ़ना पड़ेगा। और एक था कि ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, एग्जाम दो, पास करो और तुमको सर्टिफिकेट, जेन्युइन सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो मैंने फिर फ़ोन किया यूनिवर्सिटी को, बोला कि मैं ये करूँगा, आप लोग मेरे को अप्लाई मतलब करने देंगे? तो वो लोग कि हाँ ये तो इट्स वैलिड, ओनली गवर्नमेंट का है।
तो मैंने फिर सोचा कि ये कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा। फिर मैं सोचा कि यार इसको करूँगा, फिर मैं BSc करूँगा, फिर मैं MSc करूँगा, फिर PhD के लिए भागूंगा, फिर ये करके IDA का एग्जाम दूंगा, ये भी थोड़ा झमेला है। मैंने सोचा कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, डॉक्टर बुलाने के लिए तो कौन बुलाएगा। मैं बोला कि हाँ साइकेट्रिस्ट लोग भी तो डॉक्टर है, क्लिनिकल नाम के आगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट लिखूंगा तो क्या मस्त लगेगा, मम्मी को भी ठगा दूंगा। हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हाँ डॉक्टर है, दिमाग का है। तो फिर मैंने देखा कि ये BA मतलब आर्ट्स में यार साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आर्ट्स में तो चाहिए, अच्छा है, लेना चाहिए, बट तुमको मास्टर्स में भी तुम ले सकते हो साइकोलॉजी से। उसके बाद पहला साल तुम्हारा जनरल स्टडीज होगा, सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि क्लिनिकल लो, काउंसलिंग लो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लो। तो मैंने अभी मतलब आई एम स्टिल डूइंग वो मतलब थोड़ा मेहनत है। मास्टर्स का स्टडीज तो ये हम लोग ने फिटनेस का भी पढ़ा है कि बहुत वास्ट होता है, जैसा अपने लोग को दिखता है वैसा नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेमोराइजेशन है। और फिर स्पेशली BSc नहीं करके अगर मैं डायरेक्ट MSc कर रहा हूँ, MA कर रहा हूँ तो और पढ़ना पड़ता है। तो मैं अभी मतलब एंट्रेंस एग्जाम वो सब मतलब पहले से ही मैं पढ़ना शुरू कर दिया कि यार एटलीस्ट आई शुड बी इक्विप्ड नॉलेज का साथ। फिर वही अभी मतलब वही चल रहा है। फर्स्ट ईयर तो खत्म होने के साथ साथ फिर नेक्स्ट में मेरा डिसीजन लेना पड़ेगा कि शुड आई टेक क्लिनिकल, क्योंकि बहुत उसमें भी बहुत झमेला पड़ना पड़ेगा। तो वही टिल डेट मतलब एंड गोल तो वही है, डॉक्टर बनना है। देखते हैं कितना टाइम लगेगा, 10 साल 20 साल बन जाएगा। एनीवेज वी विश यू ऑल द लक दोनों के लिए। थैंक यू सो मच। और सब স্কোৱাড আহি যাতে এটা ৰিভলিউশ্যন তোমালোকে যি ভাবিছা সেইটো যদি ক্ৰিয়েট কৰা আমাৰ ফিটনেছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আৰু আগবঢ়াই লৈ যোৱা, আমাৰ এইটোৱে আশা থাকিলে। আৰু যি ছাপৰ্ট থাকে আমি অভিয়াছলি কৰিমেই। ষ্টে ফিট লিভ পিয়'ৰ ফিটনেছ একাডেমি থাকিবই। So আমি অডিয়েন্সক ক'ব বিচাৰিছোঁ লাইক ষ্টে ফিট লিভ পিয়'ৰ ফিটনেছ একাডেমি, পুলক ছাৰ, কান্তি মেডা, গোপাল দা, পংকজ দা, দে आर हेल्पिंग अस अ लॉट टू I mean the trainers जिनको ट्रेनर बनना है, I would say this literally I would say because मैंने सर के अंडर में नहीं किया है, लेकिन फिटनेस में मैंने किया है। आपको ना वो कनेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप कहीं से भी दे आर लाइक elder brothers। कहीं नेम एनी टॉप क्लास जो वो होते हैं ना सर्टिफिकेशन, पुलक सर हैज NSCA। यार तुमको पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा पता है? पंकज नोस कितना, तुम नॉर्मल नहीं है, इतना इजी नहीं है। NSCA से पास करना इज नॉट अ बच्चों का खेल। तो वही है। और सर्टिफिकेशंस आपको बहुत किए है वो, लेकिन आपको है ना वो करोगे, करने के बाद आपको वो नहीं मिलेगा कि आपको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कि यार क्या कर रहा है अभी, कैसे करेगा। और फिर आप मेरा पर्सनली मैंने जहाँ से किया था मेरा तो वैसा कनेक्ट है, रिस्पेक्ट है एज ए प्रोफेसर है, एज ए गुड प्रोफेसर, इज गुड ऑल्सो गुड प्रोफेसर। बट वो मतलब वो कनेक्शन नहीं मिला कि यार लुक एट, आप लोग को देखो, एवरीवन इज सिटिंग हैविंग अ गुड टाइम इवॉल्विंग। मेरा कोर्समेट कहाँ है? So simple in one line. Okay, if you want to do certification, go to any fitness institute. If you want certification with family, come and Fitness Academy. Family is very मिलेगा यार, मिलेगा। Fast and Furious का dialogue है ना भाई, money will come and go, but family remains. So like this is a family who supports you at your lowest and ups and downs, you can say. So, lifetime backhand support, anytime मिलेगा। So there is a question who is a backhand support. So I will always say the academy, Pulak sir and Monali ma'am, and Pankaj da, Gopal da and Kanti madam, they will always support us and they are still supporting us. So thank you, Stay Fit Fitness Academy and Pulak sir, Monali ma'am, Kanti madam, Gopal da and Pankaj da. Thank you so much. And we will always support them. चलिए अभी जल्दी ज्वाइन करना है तो इसमें नहीं मिलते हैं फर्स्ट यार बाकी है गो एक मिनट ইমান তাৰিখ কৈছা মোৰ কালি নিছে পাহৰি গলো মই লাষ্টত কি মই পাহৰি গলো। তো এই আজি আমাৰ আদাটো ইয়াতে খাবৰো আশা কৰিছো আপুনি আমাৰ লগত সকলোৱে জড়িত হৈ আছে ভিডিঅ'টোত। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব। Thank you audience. Thank you Stay Fit Leap Fitness Academy for inviting us in this fitness adda. So আমাৰ যি বস্তু আছিল আমি শ্বেয়াৰ কৰিলো, আই হোপ আপোনালোকে শুনে, you will get tips and ideas to shape your life. I can guarantee that. And one more also last thing, अगर आपको लगता है ना कि you don't want to run the rat race, आपको भी फिटनेस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि मैं प्रोफेशनली करूँ, come to this place. You don't have to, पैसे अगर नहीं भी लेके आ रहे हो ना, एटलीस्ट जस्ट सिट, टॉक, मीट विद द टीम, सिट
एंड वो लोग आपको हेल्प करेंगे कि हाउ टू टेक द डिसीजन, आर यू रियली लाइक डू यू रियली नीड इट, दे वोंट जज यू बेस्ड ऑन एनीथिंग, दे विल जस्ट सिंपली जस्ट बैठिए, ये जो एरिया है ना इधर में बैठिए, आप लोग बात कीजिए, यू विल यस एग्जैक्टली यू विल सिट एंड आप इतना ग्रो करोगे ना, लाइक इवन फिटनेस प्रोफेशनल्स का ना इतना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है कि दे कैन इवन बीट अ पर्सन हु इज अ प्रोफेसर और अ डॉक्टर, और वो मतलब उतने लेवल का इन टर्म्स ऑफ मनी आई एम सेइंग कि उतना लेवल तक वो लोग आराम से जा सकते हैं। तो बट उसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं खुद फंसा हूँ, मैं इवन जो आई एम स्टडीइंग बट मैं बहुत फंसा हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि वो लोग ने बोला कि यही है, यही सब है, बाहर में जो जा रहे हैं वो सब। तो लास्ट अगर मैं सबअप करूँ तो जैसे पंकज ने पूछा कि व्हेन यू फील यू आर रेडी फॉर द मैनेजमेंट, तो आई सिंपली से ब्रिंग इट ऑन, आई एम रेडी। देख लेंगे यार, हार जीत सब देख लेंगे एक साथ।